Yeah. Okay. Team, there are certain requests are coming like we should use Marathi. But we will try our best because we have a, mix of listeners, mix of team members joining us from all parts of India. So let me introduce our speaker, Mr. Atul Ausekar. He is a share market trader, broker, since he has got 22 years of experience in share market. So he has been observing and he is like uh, trading since I can tell you it is almost 22 years now. He is in share market, observing the market very closely, and day in day out he is looking at charts, analyzing the charts. He is analyst, uh, and he has got a good name in trading. So uh, he is actually chartered accountant by education, commerce postgraduate, and he is uh, working as a broker in NSE, BSE, and commodity markets. So, thank you very much for joining. Thank you, Atul sir, for giving your time for this particular webinar. I'm just before handing it over to you. There are certain instructions everyone should follow. We will have 1 hour session, which will be delivered by Mr. Atul. And then, if you have any questions related to this slide, related to a specific point, you can just put it into the chat box so that we will answer those questions. I will ask those questions from on behalf of you to Atul sir at the end of the session, and then we will have a open question and answer session at the end. So we will have detailed question answer session. So whenever you feel like having a question, please put it into the chat box. So I'm handing it over to Atul sir. Atul sir, please go ahead with your presentation. Thank you. Thank you very much. Yes. Thank you, Praveen. Thank you, Praveen. Am I audible? Yeah, loud and clear, sir. Okay. Hello, everyone, and welcome to the attractive and the most talked about sector of today's economy. Everyone is talking about the share market. Everyone is interested in gaining knowledge, gaining money, gaining experience in the share market, be it a teenager, a young one, or a elder one. Everyone is interested in share market. So let's discuss the basics of share market. May it be investing, may it be trading, everything. uh, all of you may be having some questions in your mind. Let's clear all those doubts and gain some knowledge about share market. First of all, I would like to congratulate every one of you because uh, to get success in share market, it's the basic thing that you should gain knowledge. Any sort of blind following or in the flow of the webinar, we will get to know what are the reasons for unsuccessful trader, a failure in share market. All these things we are going to discuss. As the crowd has joined and many of you has requested about the medium of language, we will try to uh, continue our webinar in both English, Marathi and Hindi also. जसं की आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आजकाल सर्वांनाच शेअर मार्केट बद्दल एक प्रकारची उत्सुकता असते. मार्केट कशा प्रकारे काम करतं, मार्केट बद्दल टोकाचे
मत आहेत आपल्या इथं, आपल्या समाजामध्ये, की मार्केटमध्ये पैसे डबल होतात, मार्केटमध्ये एका रात्रीमध्ये राजाचा रंक होतो, किंवा मार्केट हे एक लॉटरीची जागा आहे, किंवा काही जे लोक आहेत ज्यांना मार्केटचा तिटकारा आहे ते डायरेक्ट त्याला सट्टा बाजार किंवा तो जुगार आहे, सामान्य माणसांनी, मध्यमवर्गीयांनी खेळण्यासारखी ती गोष्ट नाहीये, असे काही लोक आहेत. तोच विरोधाभास आपण असा बघतोय की कोविड नंतर जवळपास, की जेव्हा लोकांना एक प्रकारे घरामध्ये राहावं लागलं आणि थोडासा एक अतिरिक्त वेळ मिळाला ट्रान्सपोर्टेशन वगैरे बंद असल्यामुळं, त्यानंतर मार्केटमध्ये पार्टिसिपेशन, ज्याला आम्ही म्हणतो मार्केटच्या भाषेमध्ये, एक बेस जो आहे तो मार्केटचा वाढलाय, आणि हा बेस वाढणं कधीही वेलकम असतं या गोष्टीचा, की त्यामुळे काय होतं की डायव्हर्सिफिकेशन येतं त्या क्षेत्रामध्ये. आणि एक्सक्यूज मी, ते क्षेत्र जसं जसं डायव्हर्सिफाय होत जाईल त्या क्षेत्रामधली अनिश्चितता कमी होते, त्या क्षेत्रामध्ये जसे विविध क्षेत्रातले लोक इन्व्हॉल्व्ह होतात तसं तसं त्या क्षेत्राला आणि त्या क्षेत्रामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना त्याचा फायदाच होत असतो. तर आपण पाहूया की नक्की मार्केट म्हणजे काय आहे आणि मार्केटची आवश्यकता काय आहे, मार्केटबद्दल इतक्या टोकाची मतं का आहेत, की मार्केटमध्ये फायदा असलेले लोक खूप कमी आहेत असं का म्हटलं जातं. तर या सर्वांचं आपण एक कारण जाणून घेण्याचा, एक या विषयाला सुरुवात करण्याचा प्रयत्न करूयात. जसे की प्रवीणने सांगितलं की मला जवळपास 20 वर्षांचा अनुभव आहे, तरीही मार्केट मला रोज क्षणाक्षणाला अजूनही चकित करतं. अजूनही मला या मार्केटबद्दल किती कमी माहिती आहे हे मला क्षणाक्षणाला मार्केट जाणवून देतं. तर 10-20 वर्ष काम केल्यानंतर सुद्धा, मार्केटचा अनुभव घेतल्यानंतर सुद्धा, जर मी या ठिकाणी असं म्हणतोय, तर तुम्हाला लक्षात येत असेल की मार्केटमध्ये किती मोठ्या प्रमाणामध्ये नॉलेज आणि डाटा सामावलेला आहे. आणि याचा जर आपल्याला आपल्या जीवनामध्ये उपयोग करून घ्यायचा असेल, तर तुम्हाला आयुष्यभर एक विद्यार्थी म्हणूनच या मार्केट समोर राहावं लागेल, तर आणि तरच आपण इथे सक्सेसफुल होण्याची आशा बाळगू शकतो. तर आता आपण डायरेक्ट आपल्या वेबिनारला सुरुवात करूया. स्क्रीन विजिबल आहे सर्वांना? Yes, sir. Just a request. Hindi will be more preferred ओके language. ओके या We because येस some participants are may not understand Hindi. You ओके can use Marathi wherever you feel like and repeat it in Hindi ओके if ओके possible. Thank you. Yeah, yeah, yeah. Thank you. जैसे कि प्रवीण ने कहा कि कुछ लोग हिंदी में भी ये करना चाहते हैं, तो मैंने आप तक ये कहा है कि मार्केट में सबसे बेसिक चीज जो मैंने आज तक के ट्रेडिंग में मेरी जो भी जर्नी मार्केट के साथ रही है, उसमें एक्सपीरियंस की है कि मार्केट नॉलेज को हमेशा रिस्पेक्ट करता है। और जैसे जैसे ये वेबिनार में हम आगे बढ़ते जाएंगे, उससे हमें पता चल ही जाएगा। आप जानते ही है कि मिस्टर प्रवीण हालकीकर, जो कि QLSS बिजनेस कंसल्टिंग के फाउंडर है, उनके साथ हम आज ये वेबिनार अरेंज कर रहे हैं। मैं इसके लिए उनका आभारी हूँ। आगे चलते हैं, हम बेसिकली जाते हैं। ऑल आवर लाइफ टुडे is involved and revolving, evolving, anything is around this thing, that is rupee। आज कल हमारी जो भी जिंदगी चल रही है, कि कोई कितना भी कहे कि पैसे का कोई महत्व नहीं है या पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होकर भी पैसा बहुत कुछ है, ये आज हम सब लोग जानते हैं। आज हम लोग जो भी कुछ एजुकेशन ले रहे हैं, किसी भी स्किल को अगर हम आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी लाइफ में मेहनत ले रहे हैं, वो क्यों है? वो इसलिए है कि हम इनकम कमा सके। तो जो भी स्किल हम ये कर रहे हैं, वो इनकम क्यों चाहिए हमें? तो लाइफ को एक अच्छी तरह से क्वालिटी ऑफ लाइफ लीड करने के लिए, या हम खुद है या फिर हमारे ऊपर कोई डिपेंडेंट मेंबर्स है, उन सब की लाइफ को हमें अगर आगे ले जाना है, सर्वाइवल करना है, तो हमें पैसा कमाना जरूरी है। तो ये जो इनकम है, ये डिपेंड है कि आप सैलरीड हो सकते हैं, आप अगर रिटायर्ड है, आप बैंक में या कहीं और आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, या फिर आपकी कोई रेंट आउट प्रॉपर्टी होगी, या फिर आप एक बिजनेसमैन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, प्रोफेशनल है, तो उसके अंदर आपका प्रॉफिट, ये सोर्सेस ऑफ इनकम है। इन सभी जगह से रुपया हमारे पास आ रहा है, और वो रुपया हम क्यों कमा रहे हैं?
इसलिए कमा रहे। एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंडिचर्स हर टाइप के हैं। बेसिक एक्सपेंसेस है, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है जो कि हम सब लोग जानते हैं, रोटी कपड़ा और मकान, इसके लिए तो हर कोई खर्चा कर सकता है। फिर बाद में जो जरूरतें दो जुड़ी है इन तीन बेसिक नेसेसिटीज के साथ, एजुकेशन एंड हेल्थ, उसके लिए भी, जो कि हमारे बड़े कॉस्ट सेंटर हो चुके हैं। अब ये जब हम कमा कर सब लाते हैं, उसमें से चला जाता है, बाकी का जो भी बचता है वो हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करने की सोचते हैं। ये जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इन्वेस्टमेंट्स के दो तीन टाइप्स है। ट्रेडिशनल टाइप्स क्या इन्वेस्टमेंट्स है जो कि हमें इंडियन पब्लिक को मालूम है कि हम पैसा बैंक में रखते हैं, एफडीज में। या कोई लोग जो होते हैं जिनके पास और थोड़ा ज्यादा पैसा होता है, वो लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टीज खरीदते हैं, गोल्ड्स खरीदते हैं। और अगर हमें फ्यूचर की जो एक इंस्टेबिलिटी है, फ्यूचर में जो एक अनसर्टेनिटी है, उसको अगर हमें टैकल करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं अलग अलग टाइप का। तो ये सब इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन है। लेकिन ये जो यहाँ पे मॉन्स्टर है, ये सब इस इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को लगातार खाते रहता है। इस मॉन्स्टर का नाम क्या है, इन्फ्लेशन। अब ये जो इकोनॉमिकल टर्म्स है, जो आप में से फिनेंशियल बैकग्राउंड के लोग हैं, कॉमर्स वगैरह के बैकग्राउंड के लोग हैं, तो इनको इनिशियली ये चीजें मालूम होगी, या फिर आजकल हम न्यूज देखते हैं या फिर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, वहाँ उस जगह पे हमें मालूम होगा कि इन्फ्लेशन, जिसको हिंदी में महंगाई दर ऐसा कहा जाता है, महागाईचा दर ज्याला आपण मराठीमध्ये म्हणतो, की आजकाल जो दर महिन्याला जाहीर केला जातो, किरकोळ महागाई दर, ठोक महागाई दर, ज्याच्याबद्दल बोललं जातं, तर हा कशा प्रकारे इन्फ्लेशन जे आहे ते कशा प्रकारे आपल्याला त्रास देत आहे, तर ते आपण पुढे जाऊन जर बघायचा प्रयत्न केला तर आपण ते थोडस समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया की हे काय आहे नक्की, की इन्फ्लेशन नक्की काय करतं. Sir, can you please put it into the presentation mode? या ब्लँक स्क्रीन, इज ब्लँक Yeah, स्क्रीन. blank screen. या We can see the blank screen. Yes. ओके. आता आपण बघितलं की काय आहे, आपण कमवून आणतो, इन्कम मायनस एक्सपेंडिचर इक्वल्स remaining is investment may it be in FD, property, gold, insurance, but all this can be eaten out more or less by inflation. मग काय आहे हा महागाई दर म्हणजे नक्की काय. तर आता आपण एक साधं उदाहरण घेऊन बघूया, एक एक्झाम्पल घेऊया जनरली, की एफडी वरती आता सध्या काय व्याजदर चालू आहे, जनरली जवळपास 8%. आपण एक जनरलायझेशन करतोय मी, की नॅशनलाइज बँकांमध्ये जवळपास एक 6-6.5% व्याजदर आहे. तो इतर ठिकाणी पतसंस्था, ज्येष्ठ नागरिक, काही त्यातली असतील, एक जनरली 8%. मग हा व्याजदर काय असतो, पर ॲनम. पर ॲनम म्हणजे काय, तर दर वर्षाला, म्हणजे दर वर्षाला जर तुम्ही बँकेमध्ये 1 वर्षाकरता 100 रुपये ठेवले तर त्याचे 1 वर्षानंतर तुम्हाला 108 रुपये मिळणार आहेत व्याजासहित. याचा अर्थ काय होतो, की 8% व्याजदराचा परतावा आहे. 8% इंटरेस्ट रेट यू आर गेनिंग अपॉन पर 100 रुपीज यू आर इन्व्हेस्टिंग इन एफडी. तर अशा प्रकारचा एक व्याजदर आहे. मग किंवा आपण काय केलं, की थोडीशी रिस्क घेतली, ज्याच्याजवळ एफडी पेक्षा थोडेसे जास्त पैसे आहेत. आता एफडीचं एक काय वैशिष्ट्य आहे, एफडीचं वैशिष्ट्य आहे की अक्षरशः 100 रुपये असलेला माणूस सुद्धा एफडी करू शकतो. बँक व्यवहारिक गोष्ट जरी ही नसली, प्रॅक्टिकल नसली, तरी बँकेमध्ये जर तुम्ही म्हणलात की माझ्या खात्यावरती 100 रुपये आहेत आणि मला त्याची एफडी करायची, तर ते काही तुम्हाला नाही म्हणणार नाहीये. ओके. तीच गोष्ट जर आपण प्रॉपर्टीसाठी बघायचं ठरलं
तर आपल्या आजूबाजूला जर आपण प्रॉपर्टीचे जे दर बघतो हे बघतो, तर त्याच्यामध्ये तुमच्या खिशामध्ये 100 रुपये आहेत, तर तुम्ही एखादा प्लॉट फ्लॅट घेऊ शकता का? नाही. तर त्याच्यासाठी बेसिक काय रिक्वायरमेंट आहे की प्रॉपर्टीसाठी तुम्हाला एका मर्यादेच्या पुढची रक्कम तुमच्या हातात पाहिजे, प्लस मेंटॅलिटी पाहिजे की ती रक्कम होल्ड करायची, ती प्रॉपर्टी तुम्हाला होल्ड करायची. आता प्रॉपर्टी मधलं जे परतावा आहे, प्रॉपर्टी के ऊपर जो आने वाला रिटर्न है, एनी सॉर्ट ऑफ रिटर्न यू आर एक्सपेक्टिंग अपॉन प्रॉपर्टी, हा काही ठरलेला नाही. आपण काय करतो की जनरली त्या क्षेत्रामध्ये काम करणारे जे लोक आहेत, एजंट्स आहेत, किंवा जर आपण काही वाचत असू, काही बघत असू, प्रॉपर्टी साइट्स बघत असू, तर त्याचा परतावा कसा आहे? त्याचा परतावा दोन प्रकारे. जर तुम्ही काय घेता त्यावरती, जर तुम्ही एखादा प्लॉट घेतला मोकळा, तर काय आहे, तर त्याचं व्हॅल्यू ॲप्रिसिएशनची वाट बघावी लागेल तुम्हाला. त्या प्लॉटचं व्हॅल्यू ॲप्रिसिएशन कधी होईल काय नाही, त्याच्यासाठी तुम्हाला काही काळ वाट बघावी लागेल. तेच जर तुम्ही रेडीमेड हाऊस किंवा फ्लॅट घेताय, तर काय होईल, तुमचं इन्कम लगेचच्या लगेच तुम्हाला सुरुवात होईल रेंटल इन्कमच्या स्वरूपात. ओके. तर हा झाला आपल्या गुंतवणुकीवरचा परतावा, की समजा तुम्ही प्रॉपर्टी घेतली किंवा हाऊस फ्लॅट काही घेतलेला आहे, तर त्याच्यावरती तुम्हाला रेंटल परतावा मिळू शकतो. तेच गोल्ड. आता इतके दिवस भारतीय लोकांची मानसिकता काय होती की सोन्यामधली इन्व्हेस्टमेंट कधीही नुकसानीमध्ये जात नाही. पण आपण मागच्या 3-4 वर्षामध्ये बघितलं की सोन्याचा भाव जसा वाढू शकतो तसा तुटूही शकतो. फक्त सोन्याला काय आहे की दोन प्रकारचं आहे की लिक्विडिटी, ॲज गुड ॲज पैशा एवढा लिक्विड आयटम आहे. आता लिक्विडिटी काय टर्म आहे? लिक्विडिटी म्हणजे तुम्हाला त्याचं रूपांतर, त्या असेट क्लासचं, त्या संपत्तीचं रूपांतर लगोलग पैशामध्ये करता येत असलं पाहिजे. तर गोल्डला काय आहे, गोल्डची क्वालिटी की ती लिक्विड असते. म्हणजे तुमच्याजवळ गोल्ड आहे, खिशामध्ये तुमच्या सोनं आहे, हातामध्ये तुमच्या सोनं आहे, याचा अर्थ तुमच्याकडे पैसेच असल्यासारखं आहे. लगेलग त्याचं रूपांतर पैशामध्ये होऊ शकतं. ओके, ही आहे. पण गोल्डची किंमत फक्त वाढतच जाते का? तर ते 4-5 वर्षापूर्वीपर्यंतचा आपला एक पर्स्पेक्टिव्ह होता, कारण की सोन्यानं तशा प्रकारचा परतावा दिलेला होता. जवळजवळ 1950-60 पासून ते 2010-15 पर्यंत जर तुम्ही बघत गेलात की सोन्याच्या भावामध्ये विशेष अशी पडझड तुम्हाला बघायला मिळालेली होती. सोने के जो दर है, सोने के जो रेट है, वो हमेशा बढ़ते हैं, ऐसा एक प्रकार का हमारा मानना था. लेकिन हमने क्या देखा पिछले 4-5 साल में कि उसमें भी एक प्रकार का इंस्टेबिलिटी, हमने अगर उसको 50,000 में लिया है तो 48,000 भी हो सकता है, फिर 6-6 महीने तक उस रेट में रह सकता है. तो हमने देखा कि ये भी कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि जिसके अंदर आपका कैपिटल प्रोटेक्ट रहेगा ही रहेगा. ये सब चीजें हो गई इन्वेस्टमेंट के बारे में. अब मैं आता हूँ अपना मेन टॉपिक, जिसके लिए हमने सब एग्जाम्पल देखी, इन्फ्लेशन. ये इन्फ्लेशन क्या कर रहा है? अब लेते हैं कि कल ही अपनी पिछले महीने की महंगाई दर आई. आत्ताच कालच रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केले की आमचा मागच्या महिन्यातला जो महागाईचा दर होता तो 5.5% होता. याचा अर्थ काय होतो? तर याचा अर्थ आपण एफडीच्या दृष्टीने बघून घेऊया. इथं काय बघितलं आपण, एफडी 8% व्याजदर देते. म्हणजे काय की 100 रुपयाचे 1 वर्षामध्ये 108 रुपये होणार आहे. या 108 मधले 100 रुपये तर आपलंच कॅपिटल आहे, तो काय आपला परतावा नाहीये. ते 100 रुपये आपलेच होते, आपण ते गुंतून ठेवले 100 वर्ष बँकेकडे, सॉरी 1 वर्ष, म्हणून आपल्याला त्याचे 8 रुपये एक्स्ट्रा मिळाले. पण हे इन्फ्लेशन काय करतंय, 5.5% वाढतंय. आता ह्याच्यामध्ये चढ उतार होत राहतात, कधी ते 5% वाढतं, कधी ते 7% वाढतं. मागच्या जर आर्थिक वर्षाचा आढावा आपण घेतला, अगर हम पिछले साल का आर्थिक वर्ष जो था, लास्ट फिनेंशियल ईयर अगर हम कंसिडर करते हैं, तो उसमें लगभग एवरेज जो इन्फ्लेशन था लास्ट फिनेंशियल ईयर, प्रीवियस फिनेंशियल ईयर, तो वो 7 to 8% था. लगभग जितने से हमारी जो महंगाई की दर बढ़ रही थी, लगभग उसी दर से ये इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था. यानी क्या हो रहा है इसमें, एक बात होती जा रही है कि आप एफडी पर कमा रहे हैं 8% और इन्फ्लेशन आपका उसमें से लेके जा रहा है 7%. तो आपके हाथ में क्या आ रहा है, सिर्फ 1% नेट रिटर्न जिसको कहा जाता है. इसको इकोनॉमिक्स में कहा जाता है एनआर, नेट रिटर्न्स. मीन्स क्या है, ट्रेनिंग है. अगर आप 1 साल तक 100 रुपए बैंक में रखते, 108 रुपए आपके हाथ में आते, लेकिन कुठल्या तरी उसमें का से 7 रुपए, ट्रेनिंगला मित्र माझा त्याने लिंक पाठवली. प्लीज अनम्यूट, प्लीज म्यूट योरसेल्फ. जो भी हम इन्फ्लेशन
एफडी के ऊपर रिटर्न ले रहे 8%, उसमें से 7% महंगाई बढ़ जा रही है, हमारे हाथ में नेट रिटर्न आ रहा है 1%। तो क्या हो रहा है, हमें तो लगा कि हमने 100 रुपए के 108 रुपए कर लिए, लेकिन उसमें से 7 रुपए पहले ही इन्फ्लेशन ने ले लिए आहे। आता आपण आपल्या घरामध्ये वडीलधारी माणसं असतात, आपल्या आधीच्या पिढीतली लोक असतात, त्यांच्या म्हणण्यातून ऐकतो की पैशाची किंमत वरचेवर कमी होत चालली। आमच्या काळामध्ये इतक्या रुपयामध्ये इतके वस्तू यायच्या, आमच्या काळामध्ये असं नव्हतं, इतकी महागाई नव्हती। तर ते काय आहे, ते म्हणजेच हा इन्फ्लेशन आपला परतावा खाऊन टाकत आहे। इन्फ्लेशन काय करत आहे, तर त्या परताव्याला खाऊन टाक। मग आपल्याला काय करायचंय, आपल्याजवळ एक सोपा उपाय आहे। आपल्याजवळ सोपा उपाय काय, तर या इन्फ्लेशनच्या रेटच्या पेक्षा जास्त कमाई करणे। काय करायचंय, जर इन्फ्लेशन 7 ते 8% वाढत आहे आणि तुम्हाला याच्या पुढे जायचंय, तर काय करावं लागेल, तर तुम्हाला किमान 8%पेक्षा जास्त कमाई करावी लागेल। तुम्हाला 10%, 12%, 15% इतके रिटर्न्स मिळवावे लागतील। मग हे रिटर्न मिळवणं सोपं आहे का, तर सोपं अजिबात नाही। तुमचे पैसे काम करतायत, तुम्ही काय करताय की तुम्ही नोकरी करताय, त्यातनं तुम्हाला पगार मिळते, किंवा तुम्ही सेल्फ एम्प्लॉईड आहेत, तुम्ही बिझनेसमॅन आहेत। जसं आपण सुरुवातीच्या स्लाइडमध्ये बघितलं की सॅलरी, रेंट, इंटरेस्ट किंवा बिझनेस मधलं प्रॉफिट लॉस, हे जे तुम्ही कमावताय, मेहनत करताय, हे जर तुम्हाला कुठं गुंतवून ठेवायचं आहे, तर अतिशय सुरक्षित उपाय म्हणून तुम्ही काय केलं, एक एफडी केली। पण त्या एफडीचा शेवटी उपयोग काय व्हायला आहे, तर शेवटी तुम्हाला केवळ 1% रिटर्न। एफडी की वजह से जो आपने उसको सिक्योरिटी बोलकर किया है, तो क्या हो रहा है, तो ओनली 1% रिटर्न यू आर गेटिंग। ओके, वापस आते हैं हम अपनी इस स्क्रीन के ऊपर। तो हमने क्या देखा कि इन्फ्लेशन ये कर रहा है, तो इस इन्फ्लेशन के ऊपर क्या उपाय है, तो इसमें जो बहुत सारे उपाय आहे, याला जे खूप सारे ऑप्शन्स आहेत की ज्यामुळे तुम्ही तुमचं इन्कम इन्फ्लेशन पेक्षा पुढे नेऊ शकता। त्यातल्या काही उपायांपैकी एक उपाय आहे शेअर मार्केट। तो उपाय काय आहे, व्हॉट, तो उपाय का, आणि तो उपाय कसा करायचा, व्हॉट, व्हाय आणि हाऊ, हे आपण बघूया। तर त्या अनेक उपायांपैकी एक उपाय आहे ज्याच्याबद्दल आजचा सेमिनार आहे, तो उपाय आहे स्टॉक मार्केट, की ज्याला आपण विविध मार्गांनी ओळखतो। स्टॉक मार्केट, शेअर मार्केट, इक्विटी मार्केट, शेअर बाजार, अशा प्रकारे टर्मिनॉलॉजीने त्याला ओळखलं जातं। तर हे शेअर मार्केट काय आहे, व्हॉट या प्रश्नाचं उत्तर आहे स्टॉक मार्केट इज अ प्लेस वेअर इक्विटी और शेअर्स आर बॉट अँड सोल्ड। तर आपण पहिल्या प्रथम हे जाणून घेऊया की शेअर म्हणजे काय। मराठीमध्ये त्याला काय म्हणतात, भाग। शेअर म्हणजे भाग किंवा वाटणी। तर शेअर म्हणजे काय आहे की मार्केटमधील एखाद्या कंपनीचा आपण शेअर घेतो, म्हणजे तेवढ्या प्रमाणात आपण त्या कंपनीचे काय होतो, मालक होतो। मग काय फक्त घेणे आहे का इथं मार्केटमध्ये, तर नाही। वाक्य काय, बॉट एंड सोल्ड। हमने क्या देख रहे हैं हम कि शेयर मार्केट में सिर्फ लेना है क्या, नहीं, शेयर मार्केट में लेना भी है और बेचना भी है। शेयर मार्केट में हम बॉट एंड से बाय और सेल दोनों करते हैं। तो क्यों करना है, वाई, टू गेन फ्रॉम मार्केट मूवमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। मार्केट में क्या मूवमेंट होती है, मार्केट में शेयर के भाव ऊपर जाते हैं, शेयर के भाव नीचे भी आते हैं। तो ये जो चढ़ाव उतार हो रहा है मार्केट में, ये जो मार्केट में मूवमेंट हो रही है, मार्केटमध्ये ही जी शेअर्सच्या दरामध्ये हालचाल होत आहे, वर खाली शेअर्सचे भाव जे होत आहेत, त्यात ते जे एका पर्टिक्युलर पिरियडमध्ये होतात, तर त्या पर्टिक्युलर पिरियडमध्ये जे शेअरचे चढ उतार होतात, त्यापासून आपल्याला गेन करायचा आहे। मग आपण पहिल्या स्लाइड मध्ये काय बघितलं की तो गेन जो आहे तो इन्फ्लेशन रेट पेक्षा जास्त असला पाहिजे। तर मग मी कशावरून म्हणू शकतो की शेअर मार्केट मधला जो गेन आहे तो इन्फ्लेशन रेट पेक्षा जास्त आहे, याची काही गॅरंटी आहे का, नाही। आपण पुढे चलून बघणार आहोत की शेअर मार्केटमध्ये जी गुंतवणूक आहे, जी ट्रेडिंग आहे, याची कसल्याही प्रकारची गॅरंटी आहे। मग ते का करायचंय, तर आपल्याला इन्फ्लेशन वरती मात करायची आहे म्हणून करायचंय। तर मग ते प्रॉफिटेबली केलं जाऊ शकतं का, त्याच्यामध्ये रिस्कच आहे फक्त का त्या प्रमाणामध्ये आपल्याला रिवॉर्ड मिळणार आहे, की ज्याला आपण पुढे चलून बघू की रिस्क रिवॉर्ड रेशो ज्याला म्हणतात, तो काय आहे। तर रिस्क जी आहे ती जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्रात आहे। आपण काय करतो, आपण बघितलेलं आहे की काही सहकारी बँका बंद झालेल्या आहेत, काही पतसंस्था बंद झालेल्या आहेत, काही सोसायट्या बंद झालेल्या आहेत, आपण बघतो। मग आपण त्यावरती चर्चा करतो की अरे लोक या सहकारी बँकामध्ये का पैसे ठेवत असतील, तर त्याचं उत्तर आहे जास्त परतावा। तिथं स्टेट बँकेमध्ये फक्त 6% व्याज दर होता, इथं 8% देत होते, म्हणून मी तिथे ठेवलं। म्हणजे काय केलं, आपण 2%साठी एक रिस्क घेतली।
आपण रिस्क काय कॅल्क्युलेट केली ती, आज तुम्हाला माहिती असेल की डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जे आहे DGCI ते 5 लाखापर्यंतच्या FD ला संरक्षण देतं. काही वर्षापूर्वी काय होतं ते संरक्षण 1 लाख रुपयापर्यंत होतं. म्हणजे काय की तुम्ही जर त्या बँकेमध्ये त्या संस्थेमध्ये जर ती DGCI मान्यता प्राप्त असेल तर तिथं 5 लाखापर्यंत जे तुमची गुंतवणूक आहे त्या गुंतवणुकीची गॅरंटी गव्हर्नमेंटने घेतलेली आहे. पण कधी, जेव्हा ती बँक किंवा ती संस्था दिवाळखोरीत निघते, इन्सॉल्वंट होते, तेव्हा ती एक प्रोसिजर फॉलो केल्यानंतर तुम्हाला तिथे ते पैसे मिळतात. तरी काय केलं तुम्ही, रिस्क घेतली 2% म्हणून. ही रिस्क का घ्यायची आहे, जास्त परतावा मिळण्यासाठी घ्यायची. तर हाऊ या प्रश्नाचं उत्तर आहे. त्याच्यासाठी तुम्हाला काय करावं लागेल, तुम्हाला ट्रेडिंग कम डीमॅट अकाउंट उघडावे लागेल NSE BSE रजिस्टर्ड सब ब्रोकर कडं. ते अकाउंट उघडून मिळतं. त्या अकाउंट उघडण्याची काय प्रोसिजर आहे, ते कसं चालतं, तेही आपण वेबिनार मध्ये थोड्या वेळात पाहणार आहोत. तर आपण बेसिक काय जाणवलं आपल्याला, की आपलं इन्कम आहे त्याच्यातून काही खर्च जातात, भविष्यासाठी आपल्याला काही तरतूद करायची आहे. तर ती तरतूद महागाई दरामुळे अशा ठिकाणी करणं भाग आहे की जिथं महागाई दराला या तरतुदीचा झळ कमीत कमी पोहोचेल, किंवा महागाई दर वाढत जरी गेला तर त्याच्यापेक्षाही जास्त परतावा आपल्याला मिळाला पाहिजे. तर मग एक नॉलेज म्हणून तुम्हाला गोष्ट मी शेअर करतो की मागच्या जर 5 वर्षाचा, 10 वर्षाचा, 3 वर्षाचा, ज्याला आपण हिस्ट्री चेक करणे म्हणतो, जर महागाई दर 7 ते 8% वाढला असेल तर मार्केट हे जवळपास 15%, 18% वाढलेलं आहे. म्हणजे महागाई दरापेक्षा ते जवळपास दुपटीनं वाढलेलं आहे. म्हणजे महागाई दर जरी 8% वाढला तरी मार्केटमध्ये तुमची गुंतवणूक जर असेल त्या काळात तर ती 15 ते 18%, काही बाबतीत 20% सुद्धा वाढलेली आहे. म्हणजे महागाई दर वाढला तरी तुम्हाला त्याच्यापेक्षा अधिकचा परतावा मिळालेला आहे. तर तो परतावा त्या मार्केटमध्ये काय यायचं हे आपण आता जाणून घेतलं. आता आपण अतिशय महत्वाच्या आपल्या वेबिनार मधला जो गाभा म्हणता येईल की त्याच्याकडं का आणि कसं हे बघितल्यानंतर त्याच्या हाऊ जो आहे, तर तांत्रिक भाग त्याच्यातला आपण बघितला की आपलं तिथं डीमॅट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट पाहिजे. तर त्याही पुढे जाऊन मी तुम्हाला म्हणेन की त्याच्या अगोदर पर्स्पेक्टिव्ह तुम्ही स्वतःच्या मनाला विचारा की तुमची रिस्क घेण्याची कॅपॅसिटी काय, की हिंदीमध्ये जसं म्हटलं जातं की नजर बदलो तो नजरिया बदलो तो नजारा बदलेगा, तसं मार्केटकडे आहे. तर तुमचा जर रिस्क टेकिंग ॲटिट्यूड असेल, तुम्हाला जर FDच्या पुढे जाऊन की माझ्या कॅपिटलला धक्का लागलेला मी बघू शकतो, मी एक प्रकारचं नुकसान थोड्याशा अधिक फायद्यासाठी सहन करू शकतो, हे जर पर्स्पेक्टिव्ह असेल, हे जर तुमच्या मनामध्ये पक्का असेल की थोड्याशा गुंतवणुकीमध्ये धोका पत्करल्यामुळे किंवा माझ्या गुंतवणुकी जर काही काळापुरती धोक्यात आली, माझं जर कॅपिटल काही काळापुरती कमी झालं तर मला चालणार आहे, मी त्या गोष्टी हँडल करू शकतो, इतर माझ्यावरती ज्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या हँडल करून, तर आणि तरच तुम्ही मार्केटमध्ये पार्टिसिपेट करण्यामध्ये काहीतरी अर्थ आहे. अन्यथा तुम्हाला मार्केटमध्ये याच्या पुढचं ऐकण्याची सुद्धा आवश्यकता नाही. कारण की मी जसं आधीच क्लिअर केले की मार्केटमध्ये कुठल्याही गोष्टीची गॅरंटी नाही. तर आपण पुढे बघूया की काय आहे, हा पर्स्पेक्टिव्ह आहे. पर्स्पेक्टिव्ह काय म्हणतोय मार्केटमध्ये की पर्स्पेक्टिव्ह जो काय आहे त्या पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये आपल्याला बघायचं आहे की प्रवीण Checking. Someone is using हा या cannot not. ओके. तर पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये Let आपण me काय see. करतोय की पहिल्यांदा बघतोय की रिस्क मॅनेजमेंट काय, द ओनली क्वालिटी इसेन्शियल इन एनी सॉर्ट ऑफ व्हेंचर इन्क्लुडिंग फिनान्शियल मार्केट्स. की रिस्क मॅनेजमेंट हा अतिशय बेसिक आणि अत्यंत महत्वाचा गुण आहे कुठल्याही प्रकारचं जर फिनान्शियल मार्केटमध्ये तुम्हाला सक्सेस पाहिजे असेल तर. काय आहे हे आता रिस्क मॅनेजमेंट, तर आपण थोडक्यात त्याला समजावून घेऊया. रिस्क मॅनेजमेंट म्हणजे काय की माझ्या जवळ जर 100 रुपये आहेत तर मी किती रुपयाचं अपेक्षा करतोय मार्केटमधून. जर तुम्ही बँकेमध्ये घेऊन जाता FD करायसाठी तर तुम्ही काय अपेक्षा केली आहे की मला 8 रुपये व्याज दर मिळणार, 8 रुपये व्याज मिळणार आहे. तर कशाच्या अगेन्स्ट ते माझे 100 रुपयाला न धक्का लागता. ओके, आपण त्या 8 रुपयातले 7 रुपये, 6 रुपये, 5 रुपये महागाई दर, इन्फ्लेशन रेट खाऊन टाकतोय आपले. तर आपल्याला अधिक पैसे मिळवायचे म्हणून आपण काय केलं, मार्केटमध्ये आलो. मग इथं मार्केटमध्ये तुम्हाला किती रिस्क घ्यायची आहे, 100 रुपये आपण जर मार्केटमध्ये गुंतवणूक करतोय तर ते 100च्या 100 रुपये जर आपण पूर्णतः लावणार असू मार्केटमध्ये तर त्याच्या अगेन्स्ट किमान काय पाहिजे तुम्हाला, किमान FD पेक्षा जास्त व्याजदर पाहिजे. किती वेळामध्ये पाहिजे, जर तुम्ही FD 1 वर्षाची करत आहात तर
त्या 1 वर्षाच्या FD मध्ये तुम्हाला 8% मिळत आहेत. तर त्याच्यापेक्षा जास्त पैसे मिळावे हा तुमचा जो रिस्कच्या अगेन्स्ट रिवॉर्डची अपेक्षा आहे, तुमचं जे रिवॉर्ड मिळवायचा आहे, तर त्या अगेन्स्ट तुम्ही किती रिस्क घ्यायला तयार आहात, की 8 रुपयाच्या अगेन्स्ट तुम्हाला किती नुकसान झालेलं चालेल, ही ही जी गोष्ट है, याची जी मैनेजमेंट है, त्याला रिस्क मैनेजमेंट म्हणतात. रिस्क मैनेजमेंट क्या है, तो आप मार्केट में किस प्रकार के रिस्क ले रहे हैं, एट व्हाट अमाउंट ऑफ रिस्क यू आर रेडी टू टेक इन द मार्केट अगेन्स्ट द रिवॉर्ड, त्याला रिस्क मॅनेजमेंट म्हणतात. आणि मार्केटमध्ये तुम्ही कुठलाही कोर्स कराल, जो भी कोर्स आप करेंगे, इफ एनी कोर्स यू आर गोइंग टू डू, बेसिक, एडवांस, इंटरमीडिएट कोर्स, उस कोर्स में आपको सबसे पहले सिखाया जाएगा, या सब कोर्स हो जाने के बाद वो जो मेंटर है, वो टीचर है, आपको बोलेगा कि ये सब चीज अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं जमती है तो आपका कोई भी ये सब सीख कर फायदा नहीं है. इसलिए सबसे बेसिक क्वालिटी है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए. और रिस्क मैनेजमेंट कैसे आएगा, तो बेसिक आएगा रिस्क मैनेजमेंट, जो मैंने आपको पहले बोला पर्सपेक्टिव, उसी को हम साइकोलॉजी या रिस्क एपेटाइट कहेंगे. हमारा सबका एक अलग अलग रिस्क एपेटाइट है. आप अगर देखेंगे, समझिए आप एक 3-4 लोग दोस्त लोग हैं, या 3-4 आप भाई है, तो सबका क्या होगा, नेचर अलग अलग टाइप का होगा. एक भाई जॉब करता होगा, एक भाई प्रोफेशनल होगा, एक भाई बिजनेस में होगा, एक दोस्त बोलेगा कि मुझे इस टाइप का जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मुझे प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब चाहिए. गवर्नमेंट जॉब वाला क्यों बोलेगा कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, तो उसका रिस्क एपेटाइट बहुत कम है. उसको सिक्योरिटी, जीवन में उसको सिक्योरिटी सबसे ज्यादा प्यारी है. चाहे उसके बदले में उसे ज्यादा ग्रोथ ना मिले, उसे ज्यादा इनकम ना मिले, उसके लिए वो कंफर्टेबल है. उसको क्या चाहिए, सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए उसको गवर्नमेंट जॉब चाहिए. कोई प्राइवेट जॉब करने वाला आपका दोस्त होगा, भाई होगा, जानने वाला होगा, वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं, मुझे मेरे परफॉर्मेंस पे गारंटी है, मुझे मेरे परफॉर्मेंस के अगेंस्ट उस वैसा उतना प्रोग्रेस चाहिए, ग्रोथ चाहिए, उतना इनकम चाहिए, उसके हिसाब से मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, उसके लिए मुझे प्राइवेट सेक्टर. फिर वहां पे जो आपकी गारंटी नहीं भी रही तो भी चलेगा. यानी क्या है, गवर्नमेंट जॉब वाले से थोड़ा सा ज्यादा रिस्क एपेटाइट प्राइवेट जॉब करने वाले का है. या अगर कोई बोलता है कि नहीं नहीं, जॉब में जो है उसका रूटीन फॉलो करना, जॉब के ऊपर डिपेंड रहना, जॉब के ऊपर की जॉब में जो सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है, लेकिन उसके अगेंस्ट क्या आ जाता है, डिपेंडेंस आ जाता है. हम इंडिपेंडेंट लाइफ नहीं जी सकते. हमको वो जो आपका जो टाइम है उसको फॉलो ही करना पड़ेगा, जो आपकी जो जगह है वहां जाना ही पड़ेगा, एक रूटीन है वो फॉलो ही करना पड़ेगा. वो मुझे नहीं चाहिए. मैं छोटा सा का मेरा मेरा बिजनेस करूंगा, या फिर मैंने कोई डिग्री ली है, जैसे कि अभी हम जानते हैं कि मिस्टर प्रवीण वो इंजीनियर है, लेकिन वो जॉब कर रहे हैं क्या, नहीं, वो बिजनेस कंसल्टिंग के इसमें है. तो उन्होंने क्या किया है, थोड़ा सा रिस्क लिया है. रिस्क के अगेंस्ट उन्होंने क्या देखा कि मेरे में ये स्किल है कि मैं जॉब में जो स्टेबिलिटी है, सिक्योरिटी है, ग्रोथ है, वो सब मैं इंडिपेंडेंस के साथ मैं इनकम भी बढ़ा सकता हूँ. ज्यादा लोगों के साथ इंटरेक्शन कर कर मैं मेरी इनकम और बढ़ा सकता हूँ. इसलिए उन्होंने कंसल्टिंग खोली. क्या किया, फिर वो प्रोफेशनल होगा, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेसमैन होगा, बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई भी होगा, वो क्या कर रहा है, जैसे जैसे आप सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी से आगे आगे बढ़ते, रिस्क लेते हैं, रिस्क के इसमें आगे आगे बढ़ते, तो आपने देखा होगा कि उसके अगेंस्ट रिवॉर्ड भी बढ़ता जा रहा है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सैलरी में ज्यादा नहीं कमा सकते. आज हम देख रहे हैं कि ये IIT ग्रेजुएट को एट द एज ऑफ 21 1 करोड़ का पैकेज मिला, 2 करोड़ का पैकेज मिला, लेकिन वो पैकेज देने वाला कौन है, वो पैकेज देने वाला एक रिस्क टेकर है. वो पैकेज देने वाला कौन है, एक बिजनेसमैन है, जिसने एक आइडिया, उसकी जो मन में आइडिया आई उसके ऊपर उसने पैसे लगाए, उसके ऊपर उसने टाइम दिया, और वो आज क्या कर रहा है, करोड़ों का पैकेज का जॉब एक वर्दी कैंडिडेट को ऑफर कर रहा है. मैं डोंट बी ऑफेंसिव, मैं किसी को भी यहाँ पर ऑफेंड नहीं कर रहा हूँ कि सैलरी वाले या जॉब वाले अच्छे नहीं है, सिर्फ बिजनेसमैन ही अच्छे नहीं. मैं आपको आपकी खुद की साइकोलॉजी, खुद का रिस्क एपेटाइट एग्जामिन करो कि आप लाइफ में कैसे हो, आपके एटीट्यूड क्या है. मैं इस टॉपिक पे क्यों ज्यादा ध्यान दे रहा हूँ, आप अगर जीवन में और किसी भी सेक्टर में रिस्क नहीं ले सकते, आपको अगर आपके पैसे का नुकसान, एसेट का नुकसान, टाइम का नुकसान बिल्कुल भी सहन नहीं हो रहा है, देन आई एम टेलिंग यू, आई एम वार्निंग यू, शेयर मार्केट इज नॉट अ प्लेस फॉर यू. मार्केट में जब तक आपका रिस्क एपेटाइट, आपका रिस्क का एटीट्यूड थोड़ा सा ज्यादा नहीं है, तब तक मार्केट आपको रिवॉर्ड नहीं करने वाला है.
ओके, साइकोलॉजी आप अपनी अपनी देखिए, फिर ही मार्केट में आ सकते। थोड़ा सा तो रिस्क लेना पड़ेगा भैया, उसके सिवा मार्केट में आपको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। थर्ड थर्ड पार्ट पर आते हैं हम अभी, फिनेंशियल गोल। क्या है आपके फिनेंशियल गोल? तो फिनेंशियल गोल जो है वो टाइम टू टाइम आदमी के बदलते जाते हैं। फॉर्चुनेटली अगर आप एज के 20-22 से साल में ही क्वालिफाइड हो गए, आपको जॉब लग गया, आप 20-22 से साल में हम अज्यूम करते हैं कि आप मैरिड नहीं है, आपके ऊपर ज्यादा कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपके पापा मम्मी बड़े भैया जो भी है वो सब भी जॉब में है, आपके घर में 2-3 सोर्सेस से इनकम आ रहा है, तो आपका अगर जो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम है, सैलरी है, या फिर आपने बहुत जल्दी कुछ आइडिया क्लिक कर लिया, उसके लिए आपको इन्वेस्टर मिल गए, जैसे कि हम आजकल स्टार्टअप में देखते हैं कि बहुत पहले फंडिंग मिल रही है, लोगों को इन्वेस्टमेंट मिल रही है, या फिर घर से ही फंडिंग मिल जाती है, आपके पापा के पास पैसे है, मम्मी के पास है, या फिर आपने कुछ प्रॉपर्टी वगैरह में लिक्विडेट की है, तो आपका बिजनेस फ्लरिश हो रहा है एट द एज ऑफ बिलो 25। तो आपका फिनेंशियल गोल क्या होता है? ज्यादा बड़ा नहीं होता है, आपको क्या होता है कि बाबा मेरा मेरा खर्चा चल जाए, प्लस मुझे बिजनेस में और री इन्वेस्टमेंट करने के लिए बिजनेस एक्सपांड करना है, या फिर आपको जैसे मैंने कहा कि जॉब लग गई है, तो क्या है कि वो मैं जॉब में पहले तो मैं जॉब में स्टेबल होना चाहता हूँ, प्लस मेरे कुछ स्किल्स है मैं उनको अपडेट करूंगा, आगे की कुछ तो एजुकेशन लूंगा कि जिसकी वजह से मैं जॉब में जल्दी जल्दी प्रमोट होता जाऊं। तो इस टाइप के फिनेंशियल गोल होते हैं लाइफ के इनिशियल स्टेज में। जैसा ही हम आगे जाते हैं, हमारा मैरिज होता है, हमारे ऊपर कोई डिपेंड आ जाता है, या फिर आजकल पति पत्नी दोनों भी फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होना पसंद करते हैं, उस प्रकार से तो फिर क्या हो जाता है गोल कि वह हम किराए के घर में रह रहे हैं, या फिर मम्मी पापा के घर में रह रहे हैं, तो अपना अपना घर ले लेते हैं, गाड़ी ले लेते हैं, हाउस होल्ड चीजें ले लेते हैं। क्या होता है फिर? अपना फिनेंशियल गोल होता है कि थोड़ा सा खर्चा करें। जैसे ही हम थोड़ा सा आगे समझो बच्चे हो गए, या फिर मैरिज को थोड़ा सा टाइम हो गया, तो पूरी तरह से हमारा फिनेंशियल गोल पर्सपेक्टिव बदल जाता है। हम अपने से थोड़ा सा आगे सोचने की कोशिश करते हैं। हम क्या फिर कोशिश करते हैं अभी जो मेरा इनकम चल रहा है वो भी स्टेबल रहे, प्लस उसमें से जो एक्सपेंडिचर होता है वो मुझे इन्वेस्ट करना है। क्यों? मेरी उम्र भी बढ़ रही है, प्लस मेरे ऊपर डिपेंड रहने वाले मेंबर्स भी बढ़ रहे हैं। अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर आई पॉलिसी, टर्म इंश्योरेंस हो गए, अपने इंश्योरेंस हो गए, जैसे कि कोविड ने हमें बता दिया कि अचानक कुछ भी हो सकता है, 2 या 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, साल भर के लिए आपकी जॉब जा सकती है, आपका बिजनेस का इनकम का फ्लो अचानक से बंद पड़ जा सकता है। प्रॉपर्टी इनकम जिसको कि बहुत सेफ कहा जाता है, रेंट इनकम, लेकिन लोग उस वक्त में रेंट तक 2-3 महीने 4 महीने दे नहीं सकते। आगे लोगों ने जाकर वो दिया, लेकिन क्या हो गया, अचानक ही ब्रेक आ गया इनकम पे। फिर लोगों को क्या पता चला कि शॉर्ट टर्म के लिए भी कुछ पैसा बाजू में रखना चाहिए। तो फिर हम क्या करते हैं, थोड़े से पैसे एफडी में रखते हैं। और मैंने कहा कि हमको एसेट एक्वायर करना है, मुझे घर लेना है, मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे हाउस होल्ड चीजें लेनी है, उसके लिए लोन लेते हैं। फिर वो लोन का रीपेमेंट, फिर इसके लिए क्या चाहिए, और इनकम चाहिए, तो जॉब की जगह पे ज्यादा काम करो, बिजनेस में और ज्यादा मेहनत करो, प्रोफेशन में स्किल्स डेवलप करो, आगे जाओ। तो ऐसा क्या है, इनकम हम बढ़ाते जाते हैं फिनेंशियल गोल के हिसाब से। तो फिनेंशियल गोल एज के हिसाब से बढ़ते जाता है। फिनेंशियल गोल और रिस्क एपेटाइट ये साथ साथ में चलने वाली चीजें हैं। जैसे हम मार्केट में बोलते हैं कि जनरली जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है अकाउंट ओपन करने को, इन्वेस्टमेंट करने को, मैं क्या दिखता हूँ, उसका रिस्क एपेटाइट फिनेंशियल गोल क्या है, वो बिलो 30 एज ग्रुप का है, बिलो 40 एज ग्रुप का है, बिलो 50 का है, अबव 50 का है, 60 का है। तो हम क्या बोलते हैं, तू बिलो 30 है तो उसके तेरे पास अभी, एज इंडिया में हम मानते हैं कि 58-60 साल तक आप जॉब करते हैं या कुछ भी काम कर सकते हैं, तो आपके हाथ में 30 से 35 साल है कमाने के लिए। आप ज्यादा से ज्यादा रिस्क लो, पूरी तरह से आप इक्विटी मार्केट में, शेयर मार्केट में काम करो। जैसे ही आप 30 से 40 के बीच में आते हैं, हम बोलते हैं नहीं नहीं, आप एक 20%, 25% गवर्नमेंट बॉन्ड एफडीज में रखो, बाकी 70-75% मार्केट में रखो। आप 40 के ऊपर जाते हैं, हम इस रेशियो को 50-50 कर देते हैं। वैसा ही वैसा जैसे जैसे आपका फिनेंशियल गोल, आपका एज बढ़ते जाता है, आपका गोल भी अलग अलग होते जाता है, रिस्क एपेटाइट भी अलग अलग होते जाता है। नेक्स्ट पर्सपेक्टिव में स्टेप है, मार्केट में अगर आपको कुछ भी करना है, नॉलेज इज मस्ट। नॉलेज के सिवा इसमें कुछ भी नहीं है, नॉलेज इज इक्वल टू सक्सेस। आप अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, कोई भी जॉब करना चाहते हैं, किसी भी सेक्टर में जाते हैं, आप सब लोग जानते हैं, अगर हमें बेसिक बेसिक जॉब भी चाहिए कहीं पर, बेसिक जॉब क्या है कि जिसमें कोई स्किल जरूरी नहीं है तो भी है,
तो भी गवर्नमेंट में हम क्या देखते हैं, प्राइवेट में, गवर्नमेंट में 12th पास, ग्रेजुएशन, यानी क्या है, आपके लाइफ के 12 साल 15 साल आपको वो नॉलेज गेन करने के लिए बिताने हैं। तब आप क्या होते हैं, इलिजिबल होते हैं सिर्फ उस जॉब के लिए, सक्सेसफुल नहीं होते। उसी प्रकार से आप मार्केट को देखिए कि मार्केट क्या है, एक सोर्स ऑफ इनकम बनने वाला है आपका। इसके लिए इसमें सक्सेस होना है आपको, तो नॉलेज लेना जरूरी है। इस मार्केट में इग्नोरेंस या ब्लाइंड फोल्डिंग फॉलोइंग जो है, इसने किया है, ये मेरा भाई है, ये मेरा दोस्त है, वो सिर्फ 6 महीने से उसने लाख रुपए के 5 लाख रुपए कर लिए, या फिर मुझे कुछ मालूम नहीं है लेकिन मैंने न्यूज में देखा था, वो CNBC आवाज पर बता रहे थे, या फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे SMS भेजा, या फिर मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप फॉलो किया, व्हाट्सएप ग्रुप फॉलो किया, उसमें ये न्यूज आई थी कि मैंने पिछले में दिवाली में बोला था कि ये ले लो, इस दिवाली में वो 5 गुना हो गया। नहीं, इग्नोरेंस, ब्लाइंड फॉलोइंग, एवरीथिंग विल बी बच्चर्ड, ब्रूटली बच्चर्ड इन दिस मार्केट। क्या होगा, मार्केट आपको खा जाएगा, आपके पैसे को खा जाएगा। इसके लिए नॉलेज इज मस्ट। ऑल अदर क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू सक्सेस इन एनी अदर फील्ड ऑफ लाइफ। लाइफ के किसी भी फील्ड में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो क्या चाहिए, मेहनत करनी पड़ेगी, नॉलेज लेना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। आप देखते हैं कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा है कि जो आज 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़ कुछ भी कर रहा है, तो अगर वो सिर्फ उसका बेटा है तो सक्सेसफुल होगा क्या? नहीं। उसको कुछ तो बेसिक एजुकेशन लेना पड़ेगा, इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, अप्रेंटिसशिप करनी पड़ेगी। आप जानते हैं कि अपने यहाँ पे क्या एक प्रकार का ट्रेडिशन है कि जो लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, मेरिट में आते हैं, उनके लिए आज भी इंडिया में फर्स्ट चॉइस ऑफ करियर क्या है, बीइंग अ डॉक्टर, बीइंग अ इंजीनियर। ओके, तो आप अगर डॉक्टर होते हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने 90% लिए, 98, 100% लिए, आपने 12वीं तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद नीट CET जो कुछ होता है वो दिया, 5 साल तक पढ़ाई की, पढ़ाई करते करते आपने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, फिर भी डिग्री लेने के बाद उनको क्या जरूरी है, इंटर्नशिप जरूरी है, आर्टिकलशिप जरूरी है, 1 साल का नो एक्सपीरियंस लेना जरूरी है। मीन्स gaining that sort of knowledge by that sort of intellect student, then also experience is required. So लाइफ के ऑल सेक्टर्स में जो क्वालिटीज रिक्वायर्ड है वो सभी क्वालिटी आपको मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए रिक्वायर्ड है। यहाँ पे रेडीमेड शॉर्टकट कुछ आपको मिलेगा नहीं। ओके, हम अब जाते हैं अपने बेसिक सब्जेक्ट की तरफ, स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में क्या है, दो ऑप्शंस है, ट्रेड और इन्वेस्ट। ये मिस इनका मीनिंग क्या है ये हम देखते हैं अभी। ट्रेडिंग, ट्रेडिंग यानी क्या आहे, व्यापार। ट्रेडिंगला मराठीमध्ये आपण काय म्हणू, व्यापार, एक प्रकारचा व्यापार आहे। मग कुठलाही व्यापार म्हणजे काय असतो, व्यापारी म्हणजे काय करतो, आपण पाहतो आपल्या आजूबाजूला एखादी वस्तू आणतो, एखादी वस्तू जी मार्केटमध्ये लोकांना लागते ती कमी भावामध्ये घेतो, आपलं प्रॉफिट मार्जिन, आपला सगळा खर्च, आपला सगळा वेळ, अनुभव या सर्वांची बेरीज करतो, त्या वस्तूची किंमत त्या त्या प्रमाणात वाढवतो, ती वस्तू विकतो। मग त्यांनी घेतलं आणि त्यांनी विकलं, या दरम्यानचा जो फरक आहे हे त्याचं काय, प्रॉफिट आहे, हे ट्रेडिंग। ओके, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट म्हणजे काय, सरळ सरळ मराठीमध्ये अर्थ गुंतवणूक। हिंदी में हम क्या बोलेंगे उसको, एक प्रकार की जो इन्वेस्टमेंट है आपकी, वो क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं हम, तो हम मार्केट में देख रहे हैं, मार्केट मधली कमोडिटी काय है, मार्केट मधली वस्तू काय है, मार्केट में हम किस चीज में डील कर रहे हैं, मार्केट में हम डील कर रहे हैं पैसे में। यू आर गोइंग टू ट्रेड मनी, यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट मनी। मनी इज अ वेरी सीरियस मैटर। हम जानते हैं कि पैसों के लिए लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मेहनत कर रहे हैं वैसे एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, तब कहाँ पे जाकर लोगों को आज पैसा मिल रहा है। उस पैसे का अगर हम बढ़ोतरी करना चाहते हैं, उस पैसे को हम एक पर्टिकुलर स्पीड से बढ़ाना चाहते हैं, उस पैसे को हम इन्फ्लेशन रेट के आगे ले जाना चाहते हैं लाइफ में, अगर हमको ऐसा करना है कि मेरा पैसा मैं मेहनत करके जो कमा रहा हूँ, मेरी नेसेसिटीज, मेरी सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज ये हो जाने के बाद भी जो मेरे हाथ में बच रहा है, उस पैसे को अगर मुझे कहीं पे डालना है, मुझे कहीं पे इन्वेस्ट करना है, उस पैसे को अगर मुझे बढ़ाना है एक लेवल के आगे, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे उस पैसे को काम पर लगाना पड़ेगा। उसको काम को लगाने के जो बहुत सारे ऑप्शंस हमने देखे ट्रेडिशनल, उन ऑप्शंस के साथ एक ल्यूक्रेटिव ऑप्शन, एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है स्टॉक मार्केट। ओके,
तो स्टॉक मार्केट में जानने के लिए हम ने क्या देखा कि यहाँ पे दो ऑप्शंस है। तो उसके ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट क्या है, इसकी एक बेसिक टर्मिनोलॉजी हम समझ में ले लेते हैं अभी। अपने इंडिया में जो स्टॉक मार्केट चलते हैं, इसके रिगार्डिंग के जो लॉज रेगुलेशंस जिसने बनाए हैं, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस अथॉरिटी है। सेबी एक्ट 1987 इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको जो है वो पूरी तरह से एक बेसिक अथॉरिटी बोलकर मान्यता दी है सेबी को। तो सेबी जो है वो मार्केट्स को रेगुलेट करता है। सेबी इन्वेस्टर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट, इन सभी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लॉज बनाता है, नियम कायदे कानून बनाता है, और वो सभी के ऊपर लागू होते हैं। उसके फ्रेमवर्क के अंदर, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर ही काम करना जरूरी है। तो हमने देखा कि आपने को अगर मार्केट में काम करना है, तो जैसे मैंने पहले कहा कि डीमैट अकाउंट खोलना जरूरी है, ट्रेडिंग अकाउंट खोलना जरूरी है। वो अकाउंट कहाँ खुलेगा? ब्रोकर के पास खुलेगा। वो ब्रोकर कहाँ काम करेंगे? वो ब्रोकर एक्सचेंजेस में काम करेंगे। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, बीएससी, एनएससी एक्सेट्रा, ये एक्सचेंजेस है। ये क्या है? एक प्लेटफॉर्म है, एक मार्केट की जगह है। अगर मुझे ये ग्रोसरी लानी आहे, मला काही किराण्याच्या वस्तू आणायच्या आहेत, तर मी कुठं जाईन? जिथं किराण्याचं दुकान आहे तिथं जाईन. मग मला गहू पाहिजेत, मला तांदूळ पाहिजेत, ह्या मी त्या किराणा दुकानदाराला सांगेन आणि त्याच्याकडून वस्तू घेईन. अगर मुझे समझो रोजमर्रा की जो जीने की जरूरत है, उसका कुछ सामान लेना है, तो मैं कहाँ जाऊंगा? उसकी जो जो दुकान है, मुझे अगर मेडिसिन खरीदने हैं तो मैं मेडिकल पे जाऊंगा। तो आपको अगर शेयर खरीदने हैं, बेचने हैं, तो वो कहाँ पे होता है? वो इन एक्सचेंजेस पे होता है। बीएससी क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। एनएससी क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। तो ये क्या करते हैं? ये सेबी के अंडर काम करते हैं। इन जगहों पे आप शेयर बेचते और खरीदते हैं। तो इस जगह पर आपको फिजिकली जाना जरूरी है क्या? एक वक्त था तो जब फिजिकली जाना जरूरी होता था ब्रोकर के पास। ब्रोकर फिर वो आपके शेयर सर्टिफिकेट, जैसे अगर आपने बैंक में एफडी की, तो क्या करता है? वो बैंक आपको एक कागज देता है, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इतने इतने रुपए की इस इंडिविजुअल की मैंने एफडी की है, और ये एफडी इतने टाइम के लिए है, और इस टाइम के बाद इसको इतना इंटरेस्ट मिलेगा। उसको क्या कहते हैं हम? एफडी सर्टिफिकेट। वैसे ही एक शेयर सर्टिफिकेट होता है, वो बिफोर 2000, बिफोर 1995 इश्यू होता था। अब सब चीजें ऑनलाइन हो गई है, इसलिए हमें फिजिकली बीएससी एनएससी में जाने की जरूरत नहीं है। तो ये बीएससी एनएससी क्या है? ये शीर्ष संस्था हो गई, टॉप मोस्ट अथॉरिटीज हो गए, सेबी के अंडर काम करने वाले। तो इनके अंडर आते हैं ब्रोकर्स, इंटरमीडियरी, सब ब्रोकर, जो कि मैं खुद हूँ। मैं क्या हूँ? ये बीएससी एनएससी जो कि सेबी के अंडर काम करते हैं, उनका रजिस्टर सब ब्रोकर हूँ। कि मुझे एक अथॉरिटी मिली है बीएससी एनएससी की तरफ से कि आप लोगों को अकाउंट ओपन करने की सुविधा दे सकते हो। आपके थ्रू लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कम ट्रेडिंग दोनों ही कर सकते हैं। ओके। तो क्या है? मार्केट पार्टिसिपेंट यानी मार्केट में भाग लेने वाले लोग। पार्टिसिपेंट यानी क्या? मार्केट के अंदर जो लोग काम करते हैं, मार्केट मध्ये जो लोग काम करतात. आता तुम्ही हे काही टर्म्स आहेत, काही ज्या शब्द आहेत ते ऐकले असतील. DIIs, FIIs, MFs, HNIs म्हणजे काय? DIIs डोमेस्टिक इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर्स म्हणजे काय आहे? ह्या काही संस्था आहेत ज्यांना गव्हर्नमेंटनी मान्यता दिली आहे की तुम्ही मार्केटमध्ये शेअर खरेदी विक्री करू शकता. हे काय? FIIs. ह्याच्यातलं एफ म्हणजे आहे फॉरेन, विदेशातली लोक आहेत. तुम्ही न्यूज ऐकत असाल तर रोज तुम्हाला असं ऐकायला मिळत असेल, हिंदीमध्ये जर ऐकत असाल तर, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदी की, इसकी वजह से मार्केट आज बढ़ा. विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज मार्केट में बिकवाली की, इसलिए मार्केट टूटा. तर काय म्हणता येते की मार्केट मध्ये जे इन्स्टिट्यूशनल इन्व्हेस्टर आहेत, संस्था आहेत, त्यांचा DIIs, FIIs म्हणतात. MFs म्हणजे काय? म्युच्युअल फंड, जो की आज जवळपास सर्वांनी मार्केट रिलेटेड लोकांनी ऐकलेला शब्द आहे. म्युच्युअल फंड म्हणजे काय आहे? तर खूप साऱ्या लोकांकडून पैसे गोळा करणे आणि त्यांच्या वतीने मार्केटमध्ये शेअर घेणे. मग आपण स्वतः शेअर घेणे आणि म्युच्युअल फंड मध्ये पैसे गुंतवणे, यात काय फरक आहे? तर म्युच्युअल फंड कुठलाही शेअर घेणे हा काम करू शकत नाही. म्हणजे समजा माझ्याकडे आज इतके पैसे आहेत, तर मी बँकिंगचा शेअर घेतोय का, एखाद्या फार्मा कंपनीचा घेतोय का, एखाद्या धातू कंपनीचा घेतोय, याला काही मर्यादा नाहीये, माझ्यावरती कुठलं बंधन नाहीये.
ते माझी मी घेऊ शकतो, कोणाच्या सल्ल्याने घेऊ शकतो, कसंही करू शकतो. पण म्युच्युअल फंडला तसं आहे का? नाही. तर म्युच्युअल फंड आपल्याला त्याच्यामध्ये गुंतवणूक करताना सांगतं की मी शेअर मार्केट मधल्या या क्षेत्रात गुंतवणार आहे, किंवा मी शेअर मार्केटमध्ये गुंतवणार आहे थोडेसे पैसे, किंवा बॉन्ड मध्ये गुंतवणार आहे. तर त्या ज्या टर्मिनॉलॉजी आहे, त्याची जी टेक्नॉलॉजी आहे, ते आपण जेव्हा पुढचा जो आमचा कोर्स आहे की बेसिक कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिंग, त्याचे जो पुढचे मॉड्यूल्स आहेत त्याच्यामध्ये आपल्याला याच्या संदर्भात आणखी विस्ताराने जाणून घ्यायला मिळेल. HNI म्हणजे काय की हाय नेटवर्क इंडिव्हिज्युअल्स, कोटी, 2 कोटी, 5 कोटी, 10 कोटी रुपये जे मार्केटमध्ये गुंतवतात, तर ते स्वतः त्यांचा एक वेगळा बिझनेस आहे, जॉब आहे, तो वेगळा आहे. हे हँडल करणारे लोक वेगळे आहेत, हे HNI. आणि रिटेलर्स म्हणजे आपल्यासारखे व्यक्ती, की जो सामान्य व्यक्ती आहे, जो 1 रुपयापासून चालू करून कितीही रुपयापर्यंत मार्केटमध्ये ट्रेडिंग किंवा गुंतवणूक करू शकतो, असे रिटेलर्स. हे शब्द तुमच्या कानावर वारंवार पडत असतील, म्हणून आपण त्याच्याबद्दल थोडंसं जाणून घेतलं. त्याच्यानंतर काय, मार्केटमध्ये ब्रोकर्स आहेत, सब ब्रोकर्स आहेत. आता ब्रोकर मध्ये तुम्ही ऐकलं असेल, झिरोदा आहे, फायर्स आहे, एंजल इन्व्हेस्टिंग आहे, मोतीलाल ओसवाल आहे, आणखी कुणी आहे जे काही मार्केटमध्ये आहेत. हे कोण आहेत? हे ब्रोकर्स आहेत, हे दलाल पेढ्या आहेत. या काय करतायत? तर तुम्हाला मार्केटमध्ये काम करण्यासाठी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देत आहेत. म्हणजे काय, आपण बँकेचं उदाहरण घेऊया. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया ही भारतातली बँकिंग रेग्युलेशन करणारी टॉप मोस्ट संस्था आहे. मग आपले सर्वांचे पैसे रिझर्व्ह बँकेकडेच आहेत, रिझर्व्ह बँकेने मान्यता दिलेल्याकडेच आहेत. पण आपलं कुणाचं सेव्हिंग अकाउंट, करंट अकाउंट रिझर्व्ह बँकेत आहे का? नाही. आपलं कुठं आहे बँकेत अकाउंट? रिझर्व्ह बँकेने मान्यता प्राप्त बँकिंग ऍक्ट खाली ज्या बँका निर्माण झालेल्या आहेत, स्टेट बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र, ICICI बँक, HDFC बँक, इथं लिंक भेजा तुमने, सुनना नहीं. प्लीज म्यूट युअर सेल्फ. तर या लोकांकडे, म्हणजे कोण आहेत हे आहे मार्केटच्या दृष्टीने ब्रोकर्स. तर जसं की सेबी आहे, BSE NSE आहे, तर डायरेक्ट इथं ह्यांच्याकडे आपला अकाउंट आहे का? हो, पण डायरेक्ट बढ़िया इसमें इथं आहे की माझा अकाउंट मोतीलाल ओसवाल मध्ये आहे, मेरा अकाउंट मोतीलाल ओसवाल में है, मेरा अकाउंट एंजल में है, मेरा अकाउंट फायर्स में. हे म्हणजे ब्रोकर्स आहे. मग आता स्टेट बँकेने काय लिहिलं असतं? हेड ऑफिस मुंबई, बँक ऑफ महाराष्ट्र हेड ऑफिस पुणे, लोकमंगल, शिवाजीनगर. तिथं आहे का आपलं डायरेक्ट अकाउंट? नाही. सब ब्रँच आपल्या आपल्या गावातली, आपल्या आपल्या गल्लीतली, आपल्या आपल्या नगरातली जी ब्रँच आहे, त्या ब्रँच मध्ये आपला अकाउंट आहे. ते ब्रँच म्हणजे सब ब्रोकर. जसा की मी आहे, तुम्हाला अकाउंट उघडायचं आहे, तर तुम्ही मोतीलाल ओसवाल मुंबई हेड ऑफिस मध्ये जाऊन उघडण्याची काही गरज नाही. तुम्ही लातूरमध्ये राहता, पुण्यात राहता, आणखी कुठेही राहता भारतामध्ये, तुमच्या तुमच्या गावातला जो सब ब्रोकर है, आपके गांव में जो सब ब्रोकर है, उनके पास जाकर आप अकाउंट खोल सकते हैं. ये हो गया अकाउंटिंग, अकाउंट खोलना यहाँ तक का. तो ये इस मार्केट में अगर मैं नया आया हूँ, मुझे कुछ करना है, तो क्या है, तो ये मार्केट में जो लोग एनालिसिस कर रहे हैं, ये जो लोग एडवाइस दे रहे हैं, ये भी आते हैं इंटरमीडिएरीज में, एनालिस्ट, एडवाइजर्स. जैसे कि मेरे जो कलीग है, आपने अगर हमारी जो स्लाइड है, जो एडवर्टीजमेंट है देखी होगी कि बेसिक ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्ट शेयर मार्केट इन्वेस्टिंग, उसमें मेरे बाजू में जिनका नाम था, फोटो था, पंकज रांदड़, जो सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है. या क्या है, यानी क्या है कि सेबी ने उनको ऑथोराइज किया है मार्केट के बारे में सलाह देने के लिए. सब ब्रोकिंग, एनालिसिस, एडवाइजिंग, ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्केट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरमीडिएरीज मार्केट. हम आगे आगे जब आप इस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे, तो उसमें हमें इन चीजों के बारे में और जानकारी मिलती जाएगी. हम एक इंट्रोडक्शन ले रहे हैं. अब इसके आगे चलते जाते हैं, मार्केट की डायरेक्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं. आपने सुना होगा सेंसेक्स आज इतना बड़ा, सेंसेक्स आज इतना टूटा, निफ्टी इतना बढ़ रहा है, निफ्टी में आज खरीदारी हुई, निफ्टी में आज बिकवाली हुई. या जो लोग डायरेक्ट मार्केट में काम कर रहे हैं, यंग लोग हैं, मेरे सीनियर्स फ्रेंड्स है, वो सब आपने सुना होगा बैंक निफ्टी के बारे में भी. ये सब क्या है? ये सब मार्केट को जानने का एक पैमाना है, मार्केट को जानने का एक परिमाण है, मार्केट को मेजर करने के जो तरीके हैं. जैसे अगर हमें डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम किस में मेजर करेंगे? मीटर्स, सेंटीमीटर्स, किलोमीटर्स. जैसा ही ये इसमें अगर हमको कोई लिक्विड चीज मेजर करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं? लीटर्स में मेजर कर रहे हैं. वही अगर हमें इकोनॉमी मेजर करनी है, आपने सुना होगा कि इंडिया नंबर 4 की इकोनॉमी बनी. कैसे बनी? क्या है इसका पैमाना, कैसे हम उसको मेजर कर रहे हैं? तो इंडिया की टोटल इनकम, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इतना इतना बड़ा. अगर हम आप सुनते पर कैपिटा इनकम, यानी हर एक इंडिविजुअल की इनकम, तो ये क्या है? जनरलाइजेशन ऑफ डाटा है, एवरेजाइजेशन ऑफ डाटा है.
अगर मैं कहता हूं कि पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया 20,000 रुपीज है, इसका मतलब ऐसा है क्या कि भारत में हर कोई 20,000 रुपये कमा रहा है? नहीं, भारत में रोज के 100 भी रुपए ना कमाने वाले लोग हैं, और हर मिनट को कुछ लाख्स ऑफ रुपीज, हर सेकंड को कुछ लैक्स ऑफ रुपीज कमाने वाले भी लोग हैं। लेकिन जीडीपी में या पर कैपिटा इनकम में क्या कहा गया? 20,000 रुपये हर कोई कमा रहा है। तो ये क्या किया हमने, उसको मेजर करने के लिए, आपण त्याला मोजण्यासाठी हमने उसको ये करने के लिए, काउंट करने के लिए उसका एक एवरेज निकाला। तो ये एवरेज है मार्केट का। सेंसेक्स में क्या है, लगभग 30 बड़ी बड़ी कंपनियां ली गई है अलग अलग सेक्टर्स की, और उनका एक एवरेज नहीं बोल सकते हमको, वो वेटेड एवरेज है। निफ्टी, उसमें 50 कंपनियां ली गई है। बैंक निफ्टी, जैसे कि कहा गया है निफ्टी के पहले क्या लगाया गया है? बैंक्स। तो भारत के कुछ पहले 13 बैंक्स लिए गए। वो 13 बैंक्स, वो 50 कंपनियां, वो 30 कंपनियां कैसे चूज की गई है? उनका उस क्षेत्र में योगदान, वो कितने दिनों से कंपनी है, उसका टर्नओवर क्या है, उसका इकोनॉमिक्स क्या है, उसके हिसाब से उनको ये किया है। इस टेक्निकलिटी में हम जाएंगे आगे जैसे ही बढ़ते जाता है। तो उनका सबका एक एवरेज निकाला है। जनरल आदमी जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हो, ट्रेड कर रहा हो या ना कर रहा हो, फिर भी उसको मार्केट क्या चल रहा है आजकल, ये जानने के लिए हमने इन इंडाइसेस को, इन इंडेक्सेस को बनाया है। उसको कहा जाता है सेंसेक्स, निफ्टी, एक्सेट्रा। अब मार्केट के कुछ टाइप्स है। इक्विटी और कैश मार्केट, जो कि सबसे बेसिक समझा जाता है और जो कि समझने में बहुत आसान है, जिसके बारे में हम जानेंगे। फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कमोडिटी, करेंसी, ये सब मार्केट के टाइप्स है। ये टाइप्स क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है, इसमें से हम कैसे काम कर सकते हैं, कैसे बढ़ाया जा सकता है, ये सब आगे आगे हम देखते जाएंगे। तो इसके बाद आता है, आपने एमसीक्यूज तो सुना होगा, लेकिन ये है एमसीएज, मींस मल्टीपल चॉइस अवेलेबिलिटीज। तो मार्केट में अगर आपको काम करना है तो इन चैनल्स के थ्रू, इन ऑप्शंस के थ्रू आप मार्केट में पार्टिसिपेट हो सकते हैं, मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला बेसिक, अगर आप मार्केट में आज पहली बार अगर मार्केट के बारे में आ रहे हैं, आज तक आपने मार्केट के बारे में सिर्फ सुना है, एक भी रुपया आपने आज तक मार्केट में ट्रेड की नहीं है, उससे भी आगे जाकर मैं कहूंगा कि आपका आज तक ट्रेडिंग या डीमैट अकाउंट भी नहीं है, आप करने जा रहे, तो फर्स्ट स्टेप इन मार्केट शुड बी, मस्ट बी इन्वेस्टमेंट। आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ से ही शुरू करना होगा, क्योंकि जब तक आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करोगे तब तक आप मार्केट में ध्यान देने को नहीं सीखोगे, आप मार्केट की स्टडी करना चालू नहीं करोगे, आप मार्केट के बारे में नॉलेज गेन करना नहीं चालू करोगे। सिर्फ अगर आप उसके बारे में सुनते ही रहे तो आपका कुछ इंटरेस्ट डेवलप होगा नहीं। फर्स्ट स्टेप है इन्वेस्टमेंट। फिर ये इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट में, उसके क्या टाइप्स है? उसके टाइप्स है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट किसको कहेंगे? ये शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग जो है वो टाइम के हिसाब से कहा गया है। अभी शॉर्ट क्या है? एक महीने 4 दिनों के लिए कुछ शेयर लिए या 15 दिनों के लिए कुछ शेयर लिए, बाद में बेच दिए, बढ़ता है कम होता है, दैट इज डिफरेंट पार्ट। मीडियम हम किसको बोलेंगे? कम से कम 15 दिनों के लिए लिया, ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के लिए होल्ड किया उसको, यानी रखा मेरे अकाउंट पे, बाद में बेच दिया, उसको हम मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कहेंगे। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट क्या है? 3 से 6 महीने के ऊपर जो भी हम एक आधा शेयर लेकर रखते हैं, उसको कहा जाता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ओके। फिर इन्वेस्टमेंट के बाद आता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स क्या है? मार्केट सुबह 9:15 बजे खुलता है, दोपहर को 3:30 बजे बंद होता है। इसी के बीच में अगर आपने शेयर ले भी लिया और बेच भी दिया, उसको कहा जाता है इंट्राडे ट्रेडिंग। मार्केट सकाळी उघडतं 9:15ला, 3:30ला बंद होतं, त्याच्या दरम्यानच तुम्ही खरेदी विक्रीचा व्यवहार जर पूर्ण केला तर त्या व्यवहाराला इंट्राडे व्यवहार असं म्हणतात। स्विंग ट्रेडिंग म्हणजे काय? स्विंग ट्रेडिंग आहे की शेअर घेणे, काही काळापुरता होल्ड करणे आणि नंतर विकणे। बीटीएसटी, बीटीएसटी म्हणजे काय? शॉर्ट फॉर्म आहे की बाय टुडे सेल टुमारो, म्हणजे आज घ्यायचंय उद्या विकायचंय। एसटीबीटी म्हणजे त्याच्या उलट, अशा प्रकारे। इंट्राडे ट्रेडिंग डझंट मीन ट्रेडिंग डेली, अतिशय महत्वाचा कन्सेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टंट चीज आहे। इंट्राडे ट्रेडिंगचा अर्थ असा होत नाही की तुम्ही रोजच्या रोज काम केलं पाहिजे। कधी काम केलं पाहिजे? जेव्हा मार्केटमध्ये तुमच्याशी अनुकूल परिस्थिती असेल, जब मार्केट की परिस्थितियां आपकी अनुकूल बनेंगी, आप मार्केट में काम करने लायक देखेंगे मार्केट को, तभी ट्रेड करना है। तो
इंट्राडे ट्रेडिंग का बहुत लोग ऐसा क्या मतलब लेते हैं कि जाना है रोज के रोज कुछ ना कुछ करना ही है, कुछ कुछ शेयर लेने ही है, कुछ शेयर बेचने ही है, कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा। ये आपके रेगुलर जॉब जैसा या रेगुलर किसी काम जैसा नहीं है। ये मार्केट की परिस्थितियां आपको जाननी है। एक सिंपल एग्जांपल अगर मुझे देना है तो मैं एक रिटेल बिजनेस का दूंगा कि समझिए कि मेरी एक कपड़े की दुकान है, मैं कपड़े बेचता हूँ। तो जरूरी है क्या कि मेरा रोज ही 5,000 रुपए का, 500 रुपए का, 700 रुपए का कस्टमर होगा, ग्राहकी होगी? नाही आहे। माझ्याकडे रोजच्या रोज तेवढे गिराईक आलंच पाहिजे असं काही आहे का? नाही। ते कशावरून बदलतं? लग्न सराई आहे, शादी का सीजन चल रहा है, दिवाली, दशहरा या कुछ बड़ा त्योहार आ रहा है, तो क्या होगा, मेरे पास फ्लो ज्यादा रहेगा। जनरल कुछ चल रहा है, अभी हमारे यहाँ पे इंडिया में अभी भी ट्रेडिशन फॉलो करने वाले लोग हैं, यार मैं सॅटर्डे को कुछ नाही लेता, मैं शनिवारी मी काही नवीन खरेदी करत नाही, आज अमावस्या आहे मी काही घेणार नाही। काय आहे हे? लोक ते पाळतात, मग आपल्या बिझनेसवर त्याचा परिणाम होतो का? हो। काय? त्या दिवशी अनुकूल परिस्थिती नाहीये म्हणून माझं दुकानामध्ये मी गेलो, पण तरीही मी काय केलं, दुकान उघडलं, दुकानामध्ये बसलो। जर माझ्या दुकानामध्ये काही सहकारी असतील, नोकर असतील, ते कामावर आले का? आले। आणि मी काय केलं, पर्टिक्युलर माझा दुकानचा वेळ आहे, मी सकाळी 10ला उघडतो, संध्याकाळी 8 पर्यंत चालू ठेवतो, मी ते केलंच आहे। परंतु मी काही ते विकलं का? नाही। तरी माझा बिझनेस चालू आहे ना? चालूच आहे। मग तशीच आहे इंट्राडे ट्रेडिंग, वैसी ही है इंट्राडे ट्रेडिंग। इसका मतलब कतई ये नहीं है कि आपको डेली ट्रेड करना है और डेली मार्केट में कुछ तो नुकसान बुक करना है, कुछ तो फायदा लेके जाना है, नहीं। इंट्राडे ट्रेडिंग मीन्स एडवाइजरी या ओन सेटअप के ऊपर ट्रेडिंग करना। तो ये सब जो 3 ऑप्शन है, ये 3 ऑप्शन कैसे होंगे? ये 3 ऑप्शन का फर्स्ट तरीका है इनको एग्जीक्यूट करने का, बेसिक तरीका है एडवाइजरी। मीन्स क्या है? किसी के कॉल लेना, पैसे देकर किसी की कॉल की सर्विस लगाना, या फिर किसी एनालिस्ट को उसके बारे में पूछना। आपके अगर पहले से मार्केट में काम करने वाले रिलेटिव्स है, फ्रेंड्स है, उनको क्या एक्सपीरियंस आ रहा है मार्केट में, या फिर उन्होंने क्या शेयर्स लिए हैं, तो एडवाइजरी लेना। लेकिन ये एडवाइजरी प्योरली प्रोफेशनल होनी चाहिए। प्रोफेशनल एडवाइजरी मीन्स क्या? सेबी रजिस्टर्ड लोगों को ही आपको इसके बारे में पूछना चाहिए। सिर्फ मेरे दोस्त ने, मेरे रिलेटिव ने, मेरे भाई ने लिया है, मैंने न्यूज में देखा है, इसको एडवाइजरी काउंट नहीं किया जाता है। दैट इज नॉट प्रोफेशनल एडवाइजरी। यहाँ अपने यहाँ पे इंडिया में चलन ही है, सबसे सस्ती मिलने वाली चीज क्या है? एडवाइस। फ्री में मिलने वाली चीज क्या है? एडवाइस। अगर मैंने बेसिकली भी आपको कह दिया या किसी को भी कह दिया कि यार थोड़ा सा मेरा सिर दुख रहा है, तो 50 मेडिसिन अपने सामने हाजिर हो जाएंगे। लेकिन वो प्रोफेशनल एडवाइस है क्या? प्रोफेशनल और सेफ एडवाइस क्या है? डॉक्टर के पास जाना। एज गुड एज सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट या एडवाइजर के पास से एडवाइस लेना ही प्रोफेशनल एडवाइस है। बाकी की सभी चीजें कुछ काउंट नहीं होगी। या फिर ये सेकंड चीज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ओन सेटअप। ओन सेटअप मीन्स क्या है? खुद डिसीजन लेना। खुद डिसीजन आप कब ले सकते हैं? जब तक आपको मार्केट में नॉलेज नहीं आ जाता, एक्सपीरियंस नहीं आ जाता। आप एखादा कोई कोर्स, टेक्निकल का कोर्स हो, फंडामेंटल का कोर्स हो, बेसिक मार्केट का कोर्स हो, जब तक आप एजुकेशन के साथ आप उसका नॉलेज को आपकी धार नहीं चढ़ा लेते, तब तक आप मार्केट में काम करने के लायक नहीं है। तब तक आपको प्रोफेशनल एडवाइजरी के हिसाब से ही काम करना अच्छी बात रहेगी। तब तक आपका कैपिटल सुरक्षित रहने की संभावनाएं ज्यादा है। नो गारंटी। अब क्या है? एक्टिव या फुल टाइम ट्रेडर हो सकते हैं आप। मीन्स क्या है कि आप सुबह 9:15 से 3:30 बजे तक फुल टाइम मार्केट को दे रहे, आपने इस चीज को एज अ प्रोफेशन बोल के अडॉप्ट किया है, और आप एज गुड एज दूसरे बिजनेस की तरह, जॉब की तरह ही इसको ट्रीट कर रहे हैं। आप सुबह तैयार होकर जैसे जॉब को जाते हैं, अपनी दुकान खोलने जाते हैं, अपने बिजनेस के ऊपर जाते हैं, अपने ऑफिस को जाते हैं, उसी प्रकार से आप मार्केट को ट्रीट कर रहे हैं। उसे कहा जाएगा फुल टाइम ट्रेडिंग। पार्ट टाइम ट्रेडिंग क्या है? उसको आप एज एज अ ऑप्शन देख रहे हैं कि मैं सिर्फ जॉब को जाने से पहले सुबह 9:15 से 10 बजे तक ही मैं अपनी एडवाइजरी जो लगाई वाली है उसके कॉल्स चेक करता हूँ, या फिर मार्केट को ऑब्जर्व करता हूँ, या फिर मैंने एक कोर्स किया है, एक बेसिक या इंटरमीडिएट कोर्स कंप्लीट किया है, वहां से मुझे एक सेटअप मिला है, उस सेटअप को मैं ऑब्जर्व करता हूँ। अगर वो सेटअप मेरे इस टाइम में आ गया तो मैं बाय करता हूँ, अगर उस टाइम में वो सेटअप नहीं आता है तो मैं उस दिन कुछ भी नहीं करता हूँ। इसको क्या कहा जाएगा? पार्ट टाइम की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट। पैसिव ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट, ये क्या है? पैसिव मीन्स
जिसमें हम डायरेक्टली काम नहीं कर रहे। डायरेक्टली आप कुछ उसके अंदर अपना टाइम या अपना कुछ नॉलेज नहीं लगा रहे। ये क्या है? ये क्लास ऑफ ट्रेडिंग ऐसी है कि आपने अकाउंट खोल लिया है और उस अकाउंट के ऊपर आपने अथॉरिटी दे दी है, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है शेयर्स को बेचने की, खरीदने की, सब ब्रोकर को, और आपने एडवाइजरी लगाई है। उस एडवाइजरी के हिसाब से जैसे ही आपको व्हाट्सएप पे होगा, टेलीग्राम पे होगा, फोन पे होगा, अगर उनका फोन आता है आपको कि ये शेयर ले लो, ये शेयर इतने बढ़ सकते हैं, या फिर इसमें इतना कम हो गया तो आपको लॉस बुक करना पड़ेगा, या फिर इतने दिनों में इतना होने की इसकी संभावना है, आपको प्रॉफिट मिलेगा, तो आप वो ले लेते। तो आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ एडवाइजरी के पास से एडवाइस ले रहे हैं और उस हिसाब से अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उतने दिनों तक, उतना टारगेट अचीव होने तक रुक रहे, और बाद में आप उस इन्वेस्टमेंट से बाहर आ रहे, लॉस या प्रॉफिट कुछ तो बुक कर रहे। तो ये क्या हो गई? पैसिव ट्रेडिंग या पैसिव इन्वेस्टमेंट हो गई। इसमें हमने नॉलेज नहीं लिया, अपना कुछ सेटअप नहीं बनाया, कुछ नहीं, हम एडवाइजरी के ऊपर कर रहे हैं। ओके, ये सारे ऑप्शंस है मार्केट में काम करने के लिए। कंक्लूजन को जाने के पहले हम देखते हैं कि अगर मार्केट में सक्सेसफुल होना है तो ये 3 चीजें बहुत ही जरूरी है। साइकोलॉजी, सॉरी ये पूरी तरह से आया नहीं है। साइकोलॉजी हमने पहले भी देखी है कि क्या चाहिए हमें मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए, और देखेंगे। फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज एजुकेशन। एजुकेशन मीन्स व्हाट? नॉट आवर ट्रेडिशनल एजुकेशन कि आपका डिग्री होल्डर होना जरूरी है, आप साइंस वाले, कॉमर्स वाले, आर्ट्स के होना जरूरी है। नथिंग, देर इज नो कनेक्शन बिटवीन दैट यूर ट्रेडिशनल एजुकेशन एंड एजुकेशन ऑफ मार्केट। हाँ, बेसिक इकोनॉमिकल टर्म्स, डिमांड, सप्लाई, प्राइस एक्शन, ये वो होना जरूरी है, उसके बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ। एजुकेशन होना जरूरी है। तो क्या टाइप का एजुकेशन है? एजुकेशन है मार्केट में, मार्केट के बारे में जानना, फिर मार्केट के बारे में, मार्केट का एनालिसिस कैसे किया जाता है, ट्रेडिंग क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है, इसका नॉलेज लेना। सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक्सपीरियंस। जैसे हम जानते हैं कि मैं समझो डॉक्टर हो गया, मैं इंजीनियर हो गया, या फिर मैंने कोई बिजनेस चालू किया है, तो फर्स्ट डे मैं जाता हूँ, चाहे मैंने एजुकेशन में कितना भी एक्सेल किया हो या फिर मैं एवरेज रहा हूँ एजुकेशन में, दैट डजेंट मैटर। अगर मैं पहले दिन ही जॉब पे जाता हूँ, पहले दिन ही मैंने बिजनेस पे गया, पहले दिन ही मैंने दुकान खोली, तो मुझे कुछ एक्सपीरियंस है क्या उस काम का? नहीं है। हम नौ सीखे होते हैं उस वक्त, वी आर रिक्रूट, वी आर नए नए हैं हम लोग। तो क्या होता है उसके अंदर? तो हमें एक्सपीरियंस जब तक हम गेन नहीं करते हैं, तब तक हमें उस बिजनेस के, उस जॉब के, उस सेक्टर के जो चढ़ाव उतार है वो कोई दूसरा नहीं समझा सकता, क्योंकि हर एक का एक्सपीरियंस यूनिक है। हर एक ने जो एक्सपीरियंस लिया है, मेरे पिताजी ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरे सीनियर्स ने, मेरे फ्रेंड ने जो एक्सपीरियंस लिया है, वो उसकी उसकी लाइफ का उसका नजरिया है, उसने जो एक्सपीरियंस लिया है उससे जो वो सीख लेगा वो यूनिक होगी। इसलिए मार्केट में आपका एजुकेशन, आपने किया हुआ कोर्स, समझिए आप मेरे पास कोर्स करते हैं, आप और किसी इंस्टीट्यूट में जाके मार्केट का कोर्स करते हैं, या आप ऑनलाइन कोर्स करते हैं, या आप खुद ही मार्केट से किताबें खरीदते हैं, आप वो किताबों को पढ़ते हैं, वो नॉलेज अप्लाई करते हैं, दैट डजेंट मैटर। आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपने कितने दिनों का मार्केट में एक्सपीरियंस लिया, मार्केट में कितने चढ़ाव उतार आपने देखे। मार्केट क्या है? एक तरफ से लाइव चीज है। मार्केट इज पार्ट ऑफ इकोनॉमी। मार्केट ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर मार्केट में लोग खरीदी करते जा रहे हैं तो बढ़ते ही जा रहा है, बेचते जा रहे हैं तो गिर रहा है। बाहर के एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है उसका भी उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। जैसे कि आपने देखा कि 2 वीक्स पहले जो 3-4 स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, तब से मार्केट में रैली चालू हो चुकी है। हालांकि पॉलिटिक्स और मार्केट कुछ डायरेक्टली जुड़े हुए हैं क्या? नहीं है। लेकिन आपने क्या एक्सपीरियंस किया? ये कुछ एजुकेशन में आया था क्या? एजुकेशन पढ़ाते वक्त आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि ये पार्टी जीत के आई तो मार्केट बढ़ेगा, ये पार्टी की हार हुई तो मार्केट टूटेगा। नहीं, वो आपको क्या बोलेगा? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टंट फॅक्टर, इसेन्शियल फॅक्टर फॉर ग्रोथ इन इकॉनॉमी. क्या आहे की राजकारणाची किंवा सरकारची स्थिरता ही कुठल्याही अर्थव्यवस्थेसाठी वाढण्यासाठी एक आवश्यक घटक. सरकार का स्थिर होना अर्थव्यवस्था के लिए अच्छी बात है, अर्थव्यवस्था उससे बढ़ सकती है। तो अर्थव्यवस्था बढ़ सकती है तभी मार्केट बढ़ेगा। तो मार्केट पार्टिसिपेंट ने, रिटेलर्स ने क्या सोचा कि जो रूलिंग पार्टी है वही अगर ये 3 स्टेट्स में आई है तो 6 महीने बाद जो लोकसभा के इलेक्शन है शायद उसमें भी ये रिपीट हो सकता है।
जो 5 साल से 10 साल से इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है वो कंटिन्यूअस रह सकती है, इसके वजह से मार्केट में उछाल आया। तो ये हमें कब समझा, जब हमने मार्केट में एक्सपीरियंस किया इस फिनोमेना को, तब हमें समझा। साल 2 साल पहले क्या हुआ था, रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया, तो क्या हुआ, हालांकि डायरेक्ट इंडियंस उसके अंदर मरे क्या, नहीं। इंडिया की लैंड के ऊपर वो वॉर अनाउंस हुआ क्या, नहीं। फिर भी मार्केट लगभग एक हफ्ता दबाव में रहा। क्यों, उसके दबाव क्यों लिया मार्केट ने, कि उसकी वजह से क्रूड के भाव ऊपर जा सकते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जैसे कि एफआईआई ने हमने पहले देखा, उनका फ्लो कम हो सकता है मार्केट में आने का। अरे बाप रे, मार्केट में तो इन्वेस्टमेंट जो होती है उसकी कुछ गारंटी नहीं है, तो गारंटीड सोर्स ऑफ इनकम की तरफ वो लोग जा सकते हैं। इसका डर लगा मार्केट को, इसलिए मार्केट नीचे आया। तो ये जो एक्सपीरियंस है वो टाइम के साथ ही आपको आने वाला है। और इन सब के पहले की, सबके बाद में की, सबके बीच में की, मार्केट के पूरे सब्जेक्ट को हम प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, जो भी बच जाता है मार्केट के पहले है, जिसको हम मराठी में इंग्लिश में कुछ भी बोलने जाए, जसं आपण मराठीत म्हणतो की ह्या सगळ्याला पुरून उरणारी गोष्ट, इन सबको काउंट करने के बाद भी रह जाने वाली सबसे बड़ी चीज है साइकोलॉजी। जैसे मैंने आपको कहा कि आपकी मानसिक स्थिति, मनस्थिति कुछ रिस्क लेने की है, प्लस आपकी तैयारी, आपके मन की तैयारी कुछ तो नॉलेज गेन करने की, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करने की है, आपकी साइकोलॉजी रिस्क टेकिंग है। और आप ये जब तक मान्य नहीं करेंगे कि मार्केट मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से नहीं, उसके जो फैक्टर से डिसाइडिंग उसके ही हिसाब से चलेगा, मैं मार्केट को टाइम नहीं कर सकता। मेरा आज 20 साल का एक एक्सपीरियंस है, फिर भी मैं आपको ये नहीं बोल सकता कि वेनसडे को, बुधवार को मार्केट बढ़ता ही है, या फिर अच्छी बजट आया तो मार्केट बढ़ेगा ही, यही सरकार चुनकर आई तो ही मार्केट बढ़ेगा, नहीं तो टूटेगा। नो, मार्केट में किसी भी चीज का स्टेबिलिटी नहीं है, और यही मार्केट की ब्यूटी है। इसी की वजह से मार्केट में आप अनप्रेसिडेंट रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि अगर इतनी इंस्टेबिलिटी है, अगर इतने मार्केट में किसी की भी चीज की गारंटी नहीं है, तो भी मार्केट क्यों करना है। तो हम एक जनरली, मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करता हूँ कंक्लूड करने से पहले। ये बेसिक इन्वेस्टर्स है, बेसिक मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं, जिन्होंने कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अगर देखेंगे तो मार्केट में पार्टिसिपेट होकर क्या आपको आपके सामने शेयर्स के कुछ नाम ग्रीन रेड ऐसा दिख रहे हैं? यस। यस, ओके। हाँ, ये क्या है, ये देखिए, इस इंडिविजुअल ने मार्केट में कितने रुपए इन्वेस्ट किए हैं, 80,000 रुपीज। अब आप देख रहे हैं कि कुछ शेयर्स के नाम हैं, इन्होंने किस प्राइस पे लिए, इनको इसमें कितना फायदा हो रहा है क्या नहीं। ये लगभग आज 4.5 से 5 महीनों के आसपास हो गया इनको मार्केट में इन्वेस्ट करें। तो इन्होंने कितना रिटर्न कमाया है, 10.93%। इतनी इंस्टेबिलिटी में, इसमें इतने कम रुपयों में, इतने कम टाइम में इन्होंने लगभग 11% रिटर्न आज की डेट में कमाए हैं। तो क्या किया इन्होंने, इन्फ्लेशन को बीट किया है। एक मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के बारे में हम देखते हैं, ये है, ये लगभग 2 साल से ये इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। इन्होंने महज 2,000 रुपए से मार्केट में इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की थी। कभी 2,000 रुपए, कभी 500 रुपए, कभी 1,000 रुपए, जैसा जैसा इनको ये हो सकता है। तो आप अगर ऑब्जर्व करते हुए देखेंगे तो मार्केट में लाखों रुपए की जरूरत नहीं है, एक ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं। ये एक एकदम छोटे रिटेल इलेक्ट्रिक शॉप ओनर है, जिनको मार्केट का सिर्फ बेसिक नॉलेज है, इनको सिर्फ मार्केट की इतनी ही, इकोनॉमी की इतनी ही समझ है कि एक अगर चीज है वो अगर अच्छी है, मार्केट की एक अच्छी कंपनी है, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कंपनी आपको अच्छा रिटर्न देगी। तो आप अगर देखते हैं तो उन्होंने कितने कम पैसे इन्वेस्ट किए हैं और मार्केट में वेट किया है, और कितना फैबुलस रिटर्न इन्होंने कमाया है, आप मार्केट में देख सकते हैं। इनका पोर्टफोलियो आज 90% तक प्लस हुआ है। इन्होंने मार्केट में जो पैसे डाले थे, आज ये
लगभग 3 साल से मार्केट में इन्वेस्टेड है। अगर आप 3 साल में डिवाइड भी करते हैं इस रिटर्न को, तो पर ईयर 30% रिटर्न, एक ह्यूज रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है। जहाँ की आपने कोई एफडी में ज्यादा से ज्यादा 8% मिल रहा था, 7 to 8% इन्फ्लेशन बढ़ा है। इन सब चीजों को भी आप अगर ध्यान में लेते हैं तो भी ये रिटर्न जो है, ये मार्केट ये जादू आपके साथ कर सकता है। ये आदमी एक भी ट्रेडिंग नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन्होंने इन चीजों को कमाया हुआ है। दूसरे अगर हम देखने जाए, इससे भी छोटे इन्वेस्टर है मेरे पास, जिनको जो अभी 5 महीने पहले ही जिन्होंने इन्वेस्टिंग चालू की है। बाय प्रोफेशन ये लॉयर है। ये सिर्फ 500 रुपये का, 1000 रुपये का सिप करते हैं महीने को। और एडवाइजरी जो विंग है हमारी, जो पंकज जी देखते हैं, उनकी जो एडवाइजरी विंग है, उनके एडवाइस पे, उनके एनालिसिस के हिसाब से कंपनियां लेते बेचते रहते हैं। फिर भी उन्होंने देखिए इतना रिटर्न कमा लिया है मार्केट में। तो ये एग्जाम्पल हो गए। ये एग्जाम्पल किसी भी प्रकार की गारंटी नहीं है। पास्ट परफॉर्मेंस जो है मार्केट का, यानी पिछला जो भी मार्केट के अंदर रिटर्न आया है, वैसा ही रिटर्न भविष्य में आएगा, ऐसा नहीं बोल सकते हैं। इसके साथ आप देख रहे होंगे कि कुछ डिसीजन गलत भी हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, -13% रिटर्न, यानी एफडी के जितना तो छोड़ दीजिए, कैपिटल में से भी पैसे जा रहे हैं। तो कुछ चीजें रॉन्ग हो भी सकती है, लेकिन कुछ चीजें अगर ज्यादा चीजें राइट करी और एक आधी चीज रॉन्ग हो गई, तो भी हम इन्फ्लेशन को और सारे रिटर्न को मात दे सकते हैं। इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए जो हमने पहली स्लाइड में देखा, एजुकेशन, एक्सपीरियंस और साइकोलॉजी, ये 3 चीजें जरूरी है। इसी नोट पर मैं आज का वेबिनार कंक्लूड करना चाहूँगा। आप में से जिन लोगों को भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे तो क्वेश्चंस हम लेंगे और उसके बाद ये वेबिनार कंक्लूड होगा। जिस किसी को भी आगे ज्वाइन करना होगा, हमारे बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस कोर्सेस है। बेसिक कोर्सेस में हम ज़्यादा कर इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करते हैं कि मार्केट में कुछ टाइम के लिए आपको कंपनी कैसे चूज करनी है, कौन सी कंपनी के क्या क्या डाटाज देखना है, उस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, सेक्टर्स क्या होते हैं मार्केट में, इंडेक्स क्या होता है, इनका बेसिक नॉलेज आएगा। जो हमारा उसके आगे का इंटरमीडिएट कोर्स जो है, वो कोर्स में हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के ऊपर जाते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट की अगली स्टेप, ये ट्रेडिंग, आज के आज शेयर लेना, शेयर बेचना और थोड़े दिनों के लिए शेयर रखना और उसको बेचना। और उसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है फ्यूचर्स मार्केट का, जिसको कि डेरिवेटिव्स और ऑप्शंस कहा जाता है। आज के एक्चुअली हमारे वेबिनार के सब्जेक्ट मैटर में था कि व्हाट इज ऑप्शन ट्रेडिंग, लेकिन बेसिक मार्केट का नॉलेज जब तक आप गेन कर नहीं लेते, तब तक फ्यूचर और ऑप्शंस के बारे में जानना मुमकिन भी नहीं है और आपको जानना भी नहीं चाहिए। और ट्रेड तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए उस मार्केट में। वो हम हमारे इंटरमीडिएट कोर्स में देखेंगे। और एडवांस कोर्स जो है, एडवांस कोर्स उन लोगों के लिए है कि जो बेसिक प्लस इंटरमीडिएट कोर्स कर चुके हैं, या फिर खुद से मार्केट में 1 साल, 2 साल, 6 महीने, 3 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन उतने ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, या लॉस जिनको होते रहता है, या फिर उनको ऐसे लगता है कि हमारा नॉलेज कम पड़ रहा है या हमारा एक्सपीरियंस कम पड़ रहा है, उन लोगों के लिए हमारा एडवांस कोर्स भी है। एडवांस कोर्स के लिए बेसिक एलिजिबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि आपका या तो बेसिक प्लस इंटरमीडिएट कोर्स होना कंप्लीट है, या फिर मार्केट में आपको कम से कम 6 महीने से लेकर 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। आप मार्केट में ट्रेड करते हुए चाहिए। एडवांस कोर्स में हम आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पर हमारे कुछ अथॉरिटीज रजिस्टर्ड सेटअप्स है मार्केट में, इंट्राडे स्विंग काम करने के, फ्यूचर ऑप्शंस के सेटअप है कि जिनके ऊपर आप सेटअप लगाकर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, यानी अपने आप आपको सेटअप बता देगा कि लेना है, बेचना है, या फिर उसको मैन्युअली भी आप हैंडल कर सकते हैं। और डेली ट्रेडिंग, पार्ट टाइम ट्रेडिंग कर कर आप मार्केट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऐसे कोर्सेस है। मिस्टर प्रवीण और क्यूएलएसएस के साथ आप हम जो जुड़े हैं, वो आगे भी जारी रहेगा। और क्यूएलएसएस के प्लेटफॉर्म पर प्लस आपके जो ईमेल या फिर व्हाट्सएप नंबर्स आपने शेयर किए, उसके ऊपर आपके ये कोर्सेस के डिटेल्स, इसका फीस, ये सब जो है, इनका जो भी ड्यूरेशन रहेगा, प्लस इसका स्टडी मटेरियल, इन सब चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्स शेयर किए जाएंगे। इस वेबिनार में जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उनको 2 से 3 दिनों में, आज जो हमने प्रेजेंटेशन के ऊपर टर्मिनोलॉजीज देखी,
और बेसिक स्टडी मटेरियल, ये सब शेयर किया जाएगा। 2 से 3 दिनों में आपको एक बेसिक स्टडी मटेरियल मिलेगा, जिसको स्टडी कर कर आप, हमने जो आज देखा, सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा, वो टॉपिक के ऊपर आप नॉलेज गेन कर सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आगे के हमारे कोर्स ज्वाइन करने हैं या नहीं। थैंक यू। प्रवीण, over to you. Thank you, Atul sir. It was really nice. Actually, I would say eye-opening session wherein you talk more about the purpose and why we should invest and why we should not invest. So I think these were the points you discussed. Uh, I'm really thankful from as I am representing QLSS. And thank you, Atul sir. Any questions from the participants? You can just unmute yourself and you can ask Mr. Atul. Sir, till that time, I have a question, Atul sir. Uh, uh, Atul sir, are you there? Hello. Yes, I am there. Yeah. Just one question. Actually, as I know, the Sensex started in 1979. And then if we talk about the recently we are at 65,000. So uh, as you said, Sensex is an average of 13 companies or so. So if I buy those company shares and I just uh, kept it like that, so I am not doing anything, any kind of trade. I'm not doing any kind of trade. Still, I will get something out of it, right? So, यस बेसिकली यू आर राइट कि जो भी सेंसेक्स के अंदर कंपनीज है, अगर सिर्फ उनको लेकर भी हम भूल जाते हैं या फिर अच्छी कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करके ये हो जाते हैं, तो भी हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स है उसके ऊपर हमें अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, इसके ऊपर कोई दो राय नहीं है। लेकिन इसके लिए हमें ये जानना जरूरी है कि सेंसेक्स के अंदर जो 30 कंपनियां है, वो 30 कंपनियां आज जब से सेंसेक्स बना है तो वही कंपनियां रही है क्या? नहीं, उसके अंदर ऐसा बेसिक लॉ या रूल नहीं है कि एक बार कोई कंपनी अगर सेंसेक्स के अंदर इंक्लूड हो गई तो वो लाइफ टाइम के अंदर सेंसेक्स में रहेगी क्या? नहीं, वो oh, एज गुड एज इलेक्टेड पीपल, एज गुड एज प्रमोटेड पीपल इन जॉब वैसा है कि उस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, उस कंपनी ने किस प्रकार के रिटर्न दिए हैं, उसी के ऊपर उस कंपनी का चुनाव सेंसेक्स में होता है और वही कंपनी आगे जाकर सेंसेक्स में कंटिन्यू रह पाती है। प्लस इसको एक दूसरा भी एंगल है सेक्टोरल का, ये हर सेक्टर की जो ग्रोथ होती है उसकी एक साइकिल रहती है इकोनॉमी में। जैसे हमने देखा कि कोविड के दौरान फार्मा सेक्टर बूम पे था, तो जो सभी फार्मा सेक्टर की कंपनियां थी उनके ही शेयर बढ़ रहे थे, और जो हॉस्पिटैलिटी कंपनियां थी, जैसे कि होटल कंपनियों के शेयर, ट्रैवल कंपनियों के शेयर, फूड कंपनियों के शेयर, ये सब शेयर गिर रहे थे। क्यों? क्योंकि कोई घूमने नहीं जा रहा था, कोई होटल में नहीं जा रहा था, कोई ट्रैवल नहीं कर रहा था, सब लोग अपने हेल्थ के ऊपर ध्यान रहे थे, दवाइयाँ ले रहे थे। तो उन लोगों को जो जो कंपनियां थी वो बढ़ रही थी, बाकी कंपनियां जो थी वो टूट रही थी। तो बेसिकली ये आपका कहना एकदम करेक्ट है कि अगर मैंने सेंसेक्स में जो कंपनियां है उसके अंदर इन्वेस्ट किया रहता तो मेरे पैसे बढ़े रहते। यस, लॉन्ग टर्म पे अच्छी कंपनियों की जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको ग्रोथ देती है। सर, अतुल आप अगले 10 साल में मार्केट को कैसे देख रहे हो? मतलब सॉरी, कदम सर, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन टू हिम. How do you look at the market considering India's position in global market? एंड जो भी अभी टॉप कंपनीज है, अगर मैं उनकी बात करूं तो उनके शेयर्स अगर मैं अभी लेके रखूंगा
तो पैसे बढ़ेंगे क्या, और हाउ डू यू आंसर दिस क्वेश्चन? ओके। पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए आगे आने वाले कुछ सालों का, तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी तो कंटिन्यू रहने ही वाली है। इसका मेरे मुझे ही नहीं, बाकी सारे बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो है मार्केट के, इकोनॉमिस्ट्स है, सभी लोगों को एक भरोसा है। फिर उस भरोसे का कारण क्या है? तो मार्केट में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे कि नए डीमैट अकाउंट्स कितने खुले हैं, मार्केट में कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर इंडिया का ग्रोथ रेट क्या है, इंडिया में इंडस्ट्री जॉब मार्केट कैसे बढ़ रहा है, ये सब जो चीजें मार्केट को बढ़ाती है, ये सब चीजें ग्रोथ पे है। तो उसकी वजह से मार्केट तो बढ़ते ही जाने वाला है। प्लस जैसा हमने आज के वेबिनार में देखा कि मार्केट में आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट करना है क्या, तो नो नो नो, मार्केट में आपको ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना है। तो उसके लिए क्या चाहिए? आपको मार्केट को टाइम प्लस नॉलेज, ये दोनों ही देना पड़ेगा, जो कि आप आपके बिजनेस को, जॉब को, एजुकेशन लेते वक्त आपके एजुकेशन को जो देते हैं, वही सब चीजें यहाँ पे भी देनी पड़ेगी। और तभी फिर आपको इंडिया के ग्रोथ स्टोरी का ये मिलेगा, फायदा मिलेगा। जैसे कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, अगर आप चलते चलते जाएंगे तो आप ज्यादा देर में पहुंचेंगे, पहुंचेंगे क्या, पहुंचेंगे। वही अगर आप बाइसिकल पे जाएंगे तो उससे कम देर में, वही अगर आप मोटरसाइकिल पे जाएंगे उससे कम देर में। ऐसा 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 जैसे जैसे आप आगे आगे जाते जाएंगे। लेकिन उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? आपको बाइसिकल लेनी पड़ेगी, आप अगर मोटरसाइकिल पे जा रहे हो वो लेनी पड़ेगी, वो सीखनी पड़ेगी, उसका स्किल एक्वायर करना पड़ेगा। आप बस में जा रहे हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, प्लेन में जा रहे हैं, तो उस फैसिलिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसका टिकट लेना पड़ेगा, आपको वहां पे जाना पड़ेगा। एज गुड एज दैट, आप मार्केट की रैली में पार्टिसिपेट कब कर सकेंगे? आपको मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको मार्केट का नॉलेज लेना पड़ेगा, उस इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहना पड़ेगा, अच्छे एडवाइजर को चुनना पड़ेगा, अच्छे एनालिस्ट को चुनना पड़ेगा। अगर आप खुद के बलबूते पर करना चाहते हैं, खुद इंडिपेंडेंटली करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग, तो आपको एजुकेशन लेना पड़ेगा, कोर्सेस करने पड़ेंगे, आपको मार्केट को नॉलेज प्लस टाइम दोनों एक्वायर करना पड़ेगा। तो मार्केट में आप पैसा कमा सकते हो। रही बात ग्रोथ स्टोरी की, मार्केट तो बढ़ते ही जाने वाला है। जो भी मार्केट के अंदर उतार आएंगे, जो मार्केट के अंदर फॉल आएंगे, वो मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है, जैसे कि हमारे लाइफ का रहता है। हमारे लाइफ का हर एक दिन जैसे अच्छा दिन नहीं हो सकता, हर एक दिन आपको सक्सेस ही मिलेगा ऐसे नहीं हो सकता। जैसे कि बिजनेस में हर रोज ही बिजनेस में कस्टमर आएंगे, हर रोज ही मुझे ऑर्डर्स मिलेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। बिजनेस में साइकिल्स आते हैं, वैसे ही मार्केट के खुद के साइकिल्स है, वो मार्केट का पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन ग्रोथ स्टोरी, ग्रोथ ग्राफ बढ़ते ही रहेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में एक पर्टिकुलर रिस्क लेकर एक पर्टिकुलर रिटर्न आपका बढ़ाना है, इन्फ्लेशन को बीट करना है, तो आपके पास शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के अलावा दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसलिए मैं आपको आज कह रहा हूँ कि आपको मार्केट का नॉलेज लेना पड़ेगा, मार्केट में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। Thank you, sir. Kadam sir, you can ask Yeah, question. Atul, just I have a few questions. First, ओके। you said the Nifty, right? या So, what is the criteria on the weightage for Nifty? Okay, उसमें ओके। Nifty 50 है या बैंक निफ्टी है या निफ्टी या यस सेंसेक्स है, right? So सेंसेक्स may have यस a certain number of shares and there should have some weightage also, right? यस यस। That is my first question. Second, maybe to easy to understand for everyone, maybe uh, small cap, mid cap, oh, these are the concepts, right? So how, where to invest and what is the risk on that, right? So maybe which is a more risky and where we require maybe the fundamental and technical more analysis, right? So maybe यस। everyone can understand that and they can maybe get more या insight on that. Yeah. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्वेश्चन की तरफ मैं आता हूँ कि कोई भी कंपनी अगर सेंसेक्स निफ्टी इसके अंदर उसको इंक्लूड होना है, इफ दैट कंपनी इज टू बी इंक्लूडेड इन द निफ्टी और सेंसेक्स, तो उसका क्राइटेरिया ये क्या है कि उस कंपनी में लिक्विडिटी होनी चाहिए। लिक्विडिटी मीन्स क्या? जैसे हमने गोल्ड का जो एग्जांपल लिया था, तो गोल्ड के अंदर की इन्वेस्टमेंट इतनी अट्रैक्टिव क्यों होती है? तो हम उसको किसी भी इमरजेंसी के टाइम पे कन्वर्ट कर सकते हैं पैसों में। पैसों में हमारी जो इमरजेंसी की नीड है, उसके लिए हमें चाहिए होते पैसे। तो वैसे उसी प्रकार
अगर किसी कंपनी का शेयर सेंसेक्स हो, निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, उसके अंदर इंक्लूड करना है, तो बेसिक जो 3-4 क्राइटेरियाज है उसके अंदर है कि लिक्विडिटी चाहिए उसके अंदर एट एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जब मार्केट चल रहा है उस टाइम पे उसको बायर और सेलर दोनों भी अवेलेबल होनी चाहिए, कि समझो मैंने लेके रखा है तो मुझे बेचने के लिए जो उसका भाव चल रहा है उसमें बिक जाना चाहिए उसी क्षण को, उसी सेकंड को। प्लस अगर मुझे खरीदना है तो भी वो मुझे खरीदने को आना चाहिए, उसको लिक्विडिटी कहा जाता है। सेकंड बात ये हो गई कि उसके अंदर ग्रोथ स्टोरी, जो सॉलिड रेवेन्यू रहता है, किसी भी कंपनी को हम जब अच्छा बोलते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, तो उसके कुछ बेसिक रूल्स है, बेसिक प्रिंसिपल है कि जैसे उसका जो सेल है, उसका रेवेन्यू है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, महीने टू महीने, क्वार्टर टू क्वार्टर, साल टू साल बढ़ता हुआ चाहिए। कि उसको लास्ट ईयर उसने 1000 करोड़ टर्नओवर किया था, फिर इस ईयर उसने 1200 करोड़ किया, 1500 करोड़ किया, वो है। उसको एक बेसिक लिस्टिंग कैटेगरी भी है, क्राइटेरिया भी है, जिसको कहा जाता है लिस्टिंग। किसको कहा जाता है? एनएससी और बीएससी पे उस कंपनी के अंदर ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, वो कंपनी के शेयर जो है उसकी बाइंग और सेलिंग एक्सचेंज के ऊपर करना, इसको लिस्टिंग कहा जाता है। बेसिक उसको एक क्राइटेरिया है कि लिस्टिंग हिस्ट्री ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर उसके अंदर होनी चाहिए। और एक क्राइटेरिया आता है मार्केट कैप। मार्केट कैप क्या है? उस कंपनी के टोटल शेयर्स मल्टीप्लाइड उसका आज का क्लोज रेट मार्केट का, इसका जो मल्टीप्लीकेशन आता है उसे मार्केट कैप कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने टीसीएस का एग्जाम्पल लिया, समझो उसका आज का क्लोज रेट 3200 है, और उसके मार्केट में, मैं एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ, 1 लाख शेयर्स मार्केट में है, और उसका 3200 आज क्लोज रेट है। तो 3200 इंटू 1 लाख जो आता है, वो उसका अमाउंट जो आती है उसको मार्केट कैप कहा जाता है। तो ये मार्केट कैप के हिसाब से कंपनियां डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमने अरेंज की, तो टॉप 100 में वो कंपनी आनी चाहिए, तो ही वो सेंसेक्स में हो सकती है। इस प्रकार से इस क्राइटेरिया से सेंसेक्स या निफ्टी या और इंडासिस में कंपनियों का चूज किया जाता आहे, उनकी त्यांची निवड ही अशा प्रकारे कंपन्यांची केली जाते। त्यानंतर तुमचा जो दुसरा प्रश्न होता की मार्केटमध्ये एक टर्मिनॉलॉजी आहे लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप। तर यातल्या लार्ज, स्मॉल, मिड या शब्दांचा अर्थ तर आपल्याला माहिती आहे। लार्ज म्हणजे खूप मोठं, मिड म्हणजेच मीडियमचा शॉर्ट फॉर्म आहे तो, मध्यम आकाराचं, स्मॉल कॅप म्हणजे अतिशय छोट्या आकाराची कंपनी। तर त्याच्या नंतरचा जो शब्द आहे कॅप कॅप कॅप, तो म्हणजे कॅपिटल। आपण बघितलं की मी म्हणालो की मार्केट कॅपिटलायझेशन म्हणजे काय, तर त्या कंपनीचा आजचा बंद भाव आणि एकूण शेअर्सची संख्या त्या कंपनीची मार्केटमधल्या, ह्याला म्हणतात त्या कंपनीची मार्केट कॅप। तर एका लेवलच्या वरची, आता 100 करोडच्या वरची मार्केट कॅप आहे, तर त्याला लार्ज कॅप म्हटलं जाईल। त्याच्या नंतरची जी आहे 50 कोटी ते 100 कोटी, 500 कोटीच्या वरची लार्ज कॅप, त्याच्या खालची जी आहे ती मिड कॅप, 100 कोटीच्या आतमधली जी आहे ती स्मॉल कॅप। अशा प्रकारे म्हणजे जेवढं त्यांचं कैपिटल मार्केट में है, जितना उनका मार्केट में कैपिटलाइजेशन है, उसके ऊपर उनका जो एक ग्रुप बनाया गया है। एक कंपनी अगर स्मॉल कैप है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन एक लेवल के ऊपर बढ़ जाता है तो मिड कैप हो जाती है, उसके भी आगे चला जाता है तो वो लार्ज कैप हो सकती है। लार्ज कैप का भी अगर भाव गिर जाता है शेयर का, तो वो कंपनी वापस मिड कैप भी हो सकती है। मीन्स ये जो चीजें है डायनामिक है, बदलती रहने वाली चीज है। तो जैसे उस कंपनी का कैपिटलाइजेशन है, उसके ऊपर उसको मिड कैप, लार्ज कैप या स्मॉल कैप कहा जाता है। आगे का आपका जो क्वेश्चन का सब पार्ट था, वो था इनके बारे में, इनके स्टेबिलिटी के बारे में, या फिर रिस्क कितना है उसके अंदर। अगर मार्केट को ऑब्जर्व किया जाता है, मार्केट का पास्ट का एक्सपीरियंस अगर देखा जाता है, तो जैसे जैसे हम मार्केट कैप में ऊपर ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे उस कंपनी में रिस्क कम हो जाती है। इसका जो रीजन है वो डिटेल में एक अलग लेक्चर का सब्जेक्ट है, लेकिन शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूंगा, तो अगर आप एक स्मॉल कैप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसमें कैसा होता है, रिस्क भी ज्यादा होती है, इंस्टेबिलिटी भी होती है। क्योंकि एक स्मॉल कैप कंपनी कब होती है, तो उसकी इनिशियल स्टेज में होती है, या फिर वो कंपनी बहुत दिनों से भी मार्केट में है, लेकिन वो क्या होता है, फिर वो उसकी ग्रोथ स्टोरी कंटिन्यू नहीं रही है, इसीलिए वो स्मॉल कैप बनी रही है।
तो स्मॉल कैप कंपनियों में जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो वेरी रिस्की कैटेगरी में आते हैं, वेरी वेरी मच रिस्क एपेटाइट जिसका है कि वो पूरा का पूरा कैपिटल भी अगर लूज हो जाए तो भी उस इन्वेस्टर को, ट्रेडर को फर्क नहीं पड़ेगा, उसी को रिकमेंडेड किया जाता है स्मॉल कैप का जो रिकमेंडेशन है। मिड कैप में हम जाते हैं, वो मीडियम रिस्क में आती है थोड़ी सी कंपनियां, उनका थोड़ा सा मार्केट शेयर अच्छा होता है, पर्टिकुलर टाइम उन्होंने स्पेंड किया होता है, उनकी रेवेन्यू भी धीरे धीरे बढ़ रहा होता है, उनके डेप्ट्स यानी जो हम जिनको लोन बोलते हैं वो लोन का जो फिगर्स है वो भी कम कम होते जा रहा होता है, या उनका डेप्ट इक्विटी रेशियो जिसको कहा जाता है कि कैपिटल के अगेंस्ट उनके पास जितने पैसे है उसके अगेंस्ट उनका जो लोन है वो कम रहता है। तो इसलिए मिड कैप की जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मॉल कैप से थोड़ी सी कम रिस्की कही जाती है। और जो लार्ज कैप की जो इन्वेस्टमेंट है उसके अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट करना एक स्टेबल, एक सिक्योर ऑप्शन कहा जाता है, क्योंकि लार्ज कैप की जो कंपनियां होती है वो ज्यादा करके मार्केट में एक पर्टिकुलर पीरियड उन्होंने स्पेंड किया होता है, 5 साल 10 साल, कभी कभी एक जनरेशन, 25 साल 30 साल, जो भी पुरानी कंपनियां हैं मार्केट की, रिलायंस हो जाए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईटीसी हो गया, या स्टील सेक्टर्स में टाटा ग्रुप हो गया, ये जो कंपनियां हैं इनको जनरेशन से चली आ रही है, जो मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है या ट्रेडर है नहीं भी है तो भी इनका नाम सुनकर उसे पता होता है। ये लार्ज कैप कंपनियां हो गई, इनके अंदर का जो इन्वेस्टमेंट है, ट्रेडिंग है, वो कंपैरेटिवली कम रिस्की है। फिर भी इरिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कैप, मार्केट के अंदर रिस्क है क्या, किसी चीज की गारंटी है क्या? नो, रिस्क है, ऑलवेज देयर इज रिस्क। लेकिन फिर भी जैसे मैंने एक कंसेप्ट बोला था आपको कि रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क एपेटाइट, वो हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा हमारे, और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे स्मॉल कैप में जाना है, मिड कैप में जाना है, या लार्ज कैप में जाना है। ओके, Yeah, thanks, Atul. थैंक यू, वेलकम। यस Any प्रवीण, more questions, team? हाँ अतुल सर, यस मुझे पूछना था कि शेयर मार्केट गेन और लॉस दोनों पे टैक्सेशन लगता है क्या? ओके। अगर मार्केट में आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर टैक्सेशन का थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो है वो डिपेंड है। इसमें टेक्निकल बात यह है कि अगर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट दो टाइप की मार्केट की गिनी जाती है। एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनकम टैक्स के नजरिए से अगर हम देखने जाए तो 1 साल के अंदर, अगर 12 महीने के अंदर आप कोई कंपनी का शेयर लेकर बेच देते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, और इसके ऊपर फिलहाल 20% टैक्स है अगर उसके ऊपर आपको प्रॉफिट होता है तो। और अगर आप 1 साल से ऊपर अगर उस शेयर को रखकर बेचते हैं तो इसे लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कहा जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहा जाता है इनकम टैक्स की लैंग्वेज में। उसके ऊपर अभी फिलहाल 10% टैक्स है। और लॉस के ऊपर किसी प्रकार का टैक्सेशन नहीं है क्योंकि वो निगेटिव इनकम है। लॉस को आप अगर जो प्रेसिडेंटेड टाइम ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है, रिटर्न, तो आपका ये लॉस जो है वो अगले 7 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस क्या है? फॉर एग्जांपल अगर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में आपको मार्केट में पूरा साल अगर देखा जाए तो 10,000 रुपये लॉस हो गया है, तो आपने लिया कि मेरे 10,000 रुपये मार्केट में चले गए, तो इसके ऊपर आपको टैक्स तो कोई भरना नहीं है। लेकिन अगर आपको अगले फाइनेंशियल ईयर में 22-23 में समझिए 7,000 रुपीज प्रॉफिट हो गया, तो उसके ऊपर आपको प्रॉफिट नहीं भरना, टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। उसमें से पहले आपका जो 10,000 रुपये लॉस है प्रीवियस ईयर का वो कम हो जाएगा और सिर्फ 3,000 रुपये लॉस बच जाएगा, आपको उसके ऊपर कुछ टैक्स भरने की जरूरत नहीं है। ये हो गया इन्वेस्टमेंट के ऊपर। ट्रेडिंग के ऊपर क्या है? अगर आप मार्केट में इसमें ट्रेडिंग कर रहे हैं कैश मार्केट में, तो उसको भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कहा जाएगा। लेकिन अगर आप फ्यूचर और ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो वो इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन के अंडर आएगा। उसके ऊपर आप, अगर आपको प्रॉफिट होता है तो आपके एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने किसी की एडवाइजरी लगाई है, कोई एजुकेशनल कोर्स किया है, आप उसके लिए इंटरनेट यूज करते हैं, उसके लिए खास अपने कंप्यूटर या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेके रखा है, मीन्स एज गुड एज बिजनेस। जैसे बिजनेस के खर्चे बिजनेस के इनकम में से पहले सब्सट्रैक्ट होते हैं और जो बचता है उसको प्रॉफिट मानकर उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है, वैसे ही स्पेकुलेशन इनकम को इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन के अंडर टैक्सेशन होता है। अतुल, ये जो इनकम रहता है थ्रू द शेयर ट्रेडिंग जो है, हाँ, उसका जो भी तुम ब्रोकर से लेते हो, उसका जो वो ईयर का जो स्टेटमेंट है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस का जो नेट है, उसके ऊपर आता है या उसको क्या
इनकम टैक्स का जब रिटर्न भरते हैं तो उनको क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ता है? आप अपने ब्रोकर के पास से एनुअल स्टेटमेंट मंगा लेंगे ना, तो उसमें क्लियरली सभी मेंशन होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट इतना किया है, ट्रेडिंग इतना किया है, और उसमें से आपको लॉस गेन कितना हुआ है। वही स्टेटमेंट वैलिड है, राइट? इसके लिए यस 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 यस, दैट स्टेटमेंट इज वैलिड. अतुल सर, येस, माझा एक प्रश्न असा आहे की आपण जे डीमेट अकाउंट आणि ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करतो त्याच्यावर आपण इंटरनॅशनल शेअर्स खरेदी करू शकतो? नाही. आतापर्यंत आपले जे भारतातले शेअर ब्रोकर्स आहेत ते रेग्युलर जे आपलं डीमॅट आणि ट्रेडिंग अकाउंट आहे त्यामध्ये आपण इंटरनॅशनल शेअर्स मध्ये डायरेक्ट खरेदी विक्री त्या डीमॅट आणि ट्रेडिंग अकाउंट थ्रू करू शकत नाही. आपल्याला जर बाहेरच्या देशातल्या शेअर्स मध्ये डायरेक्ट गुंतवणूक करायची आहे तर पहिल्यांदा त्याच्यासाठी आरबीआयची परवानगी घेऊन एक वेगळं इंटरनॅशनल डीमॅट आणि ट्रेडिंग अकाउंट उघडावं लागतं. त्याचे इंटरनॅशनल ब्रोकर्स भारतामध्ये उपलब्ध आहेत आणि याच्यासाठी एक सोपा उपाय असा आहे की म्युच्युअल फंड मध्ये ज्या कंपन्या सध्या भारतामध्ये काम करत आहेत त्यांनी काही बाहेरच्या एक्सचेंज वरती ट्रेड होऊ शकणाऱ्या शेअर्स मध्ये काम करणारे फंड्स आणलेले आहेत. मोतीलाल ओसवाल किंवा स्टेट बँक ऑफ इंडिया, आयसीआयसीआय यांचे इंटरनॅशनल शेअर्स मध्ये काम करू शकणारे म्युच्युअल फंड आहेत. तो रस्ता त्या मानाने सोपा आहे. म्युच्युअल फंड थ्रू होणार आहे, राईट? हा, ते डायरेक्ट म्युच्युअल फंड थ्रूच इन्व्हेस्टमेंट हा होणार, म्युच्युअल शेअरिंग फंड. नाही होणार. हा नाही, आपल्याला जर शेअर्स मध्ये गुंतवणूक करायची असेल डायरेक्ट अमेरिकेच्या म्हणा किंवा इतर कुठल्याही शेअर बाजाराच्या, तर त्याकरता वेगळी प्रोसिजर आहे. त्याकरता आपल्याला रिझर्व्ह बँकेची फॉरेन इन्व्हेस्टमेंटची परवानगी घ्यावी लागते आणि ती जर इन्व्हेस्टमेंट आपली एका रकमेच्या पुढे असेल तरच आपल्याला ती परवडते, कारण ते सगळे व्यवहार डॉलर्स मध्ये होतात इंटरनॅशनल करन्सी असल्यामुळे, आणि त्याच्यावर ते ब्रोकरेज आणि चार्जेसही डॉलर्स मध्येच चार्ज केले जातात. मग त्याचे काही लिमिटेशन आहेत का? एवढे पैसे नाही, त्याला बेसिक किंवा मिनिमम लिमिटेशन काही नाहीये, पण त्या कंपन्यांचे शेअर्सचा भाव डॉलर मध्ये हे होत असल्यामुळे बेसिकली जर आपण रुपयांमध्ये विचार करायला गेलो तर कमीत कमी एक 5 ते 10 लाख तरी बेसिक कॅपिटल आपल्याजवळ आवश्यक आहे, तरच एक म्हणजे कन्सिडरेबल गुंतवणुकीचा विचार त्यात आपण करू शकतो. ते काही कंपल्शन नाहीये तसं एवढे पाहिजेतच म्हणून. आणि दुसरं, आपण कमोडिटी मार्केटमध्ये सेम ट्रेडिंग अकाउंट म्हणून ट्रेडिंग करू शकतो? येस येस, जे तुम्ही ह्याच्यामध्ये उघडता ह्याला फक्त सेगमेंट ऍक्टिव्हेशन म्हणून एक सेक्शन असतो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मध्ये, की कुठल्या कुठल्या सेगमेंट मध्ये तुम्ही काम करू इच्छिता. समजा सुरुवातीला तुम्ही ते टिक जरी केलं नसेल तरी तुम्ही तुमच्या ब्रोकरला जर कॉन्टॅक्ट केलं की मी इतके दिवस कॅश मध्ये किंवा फ्युचर मध्ये काम करत होतो आणि आता मला कमोडिटीत करायचंय, तर तो तुमचं ते सेगमेंट लगेच ऍक्टिव्हेट करतो. त्याला वेगळं अकाउंट उघडायची गरज नाही. ओके, थँक्यू. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. I hope there are no further questions. So if there are any more questions, you can definitely ask Atul sir via QLSS, or we will definitely share all of you detailed terminology, definitions, and study material, which Yes, Atul sir is going to share. So you can, and we will share you Atul sir's contact details and everything. So whoever wants genuine advice on share market investing, they can directly contact Atul sir. So thank you, team. Thank you very much. Atul sir, we are grateful for your time and patience for answering all the questions. Thank you very much. thank you. We Thank are you. concluding this session. Yes. थँक्यू सर, थँक्यू. Thank you. Thank you very much.